नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आर के बी और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिए। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। The fastest growing channel of the nation. The fastest growing channel. The fastest growing channel of the nation, as Pradeep ji is so fond of saying. Yes. And it is the fastest growing channel of the nation, as you know. So do subscribe to the channel. It is your support which, as a result of which we keep carrying on. और आप सब लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई देखिए, प्रदीप जी, Mr. Trump is postponing the levy of tariffs on China. He has postponed it by about 180 days. 90 days दिया, फिर उसके बाद फिर 90 days, यानी 180 days हो गए। लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ कोई खास मोहब्बत है इनकी, ट्रम्प साहब की, कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ, मतलब all Indian goods are going to cost more by 50%. And as he says, if the Trump-Putin summit does not go well, there is a possibility that he might impose 250% tariffs on India. That's what he said. मुझे डर है सर, वो जंग न छिड़वा दे between India and Pakistan. जी। 3 दिन, last 3 days, तीनों दिन continuous threatening to India from either General Field Marshal Asif Munir or the Prime Minister of Pakistan. दोनों एक के बाद एक 3 दिन लगातार कर रहे। कई दूसरे मिनिस्टर्स, बिलावल भुट्टो थ्रेटन कर रहे, जंग छेड़ेंगे, इंडस पानी हम छोड़ेंगे नहीं, हमारा हक का पानी है। भुट्टो तो कह रहा है कि पूरा 6 के 6 नदी हम अपने कब्जे में ले लेंगे। How nice. एंड दूसरे हैं कि बलूचिस को, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, The Balochistan Liberation Army. BLA. So that he said BLA is a terror organization. So all these things are working. ऐसा लग रहा है कि वो जंग करा के ही छोड़ेंगे। जिस प्रकार से वातावरण, आसिफ मुनीर को तो उधर ही बिठा के रखा है यूएस में। And Asim Munir has actually threatened nuclear war. Yes. Asim Munir has threatened nuclear war. Yes. And he says he'll take half the world down with him. Half the world down with him. That's what he said. And nobody in America has protested, which is the most amazing part. Not the Washington Post, not the New York Times, not the Wall Street Journal, not even Reuters. I really would love to, not CNN. I really would love to know what's going on over here. CNBC usually first off the blocks, especially with regard to whatever is anti-India. ये क्या हुआ भाई? एक आदमी परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है और आप सब जो हैं चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे हैं। प्रदीप जी, It looks to be provoked. क्लियर कट दिख रहा है कि आपके इंस्टिगेटेड है, आप प्रोवोक कर रहे हैं आसिफ मुनीर को यहाँ पर बुला के ऐसे बात करने के लिए। एंड इन इंडिया आप सीन देखोगे, इन इंडिया ओनली असदुद्दीन ओवैसी स्टूड अप टू दैट। यस, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूएस जमीन आप किस लिए इस्तेमाल कर रहे हो, न्यूक्लियर वॉर का घोषणा करके थ्रेटन टू गो टू न्यूक्लियर वॉर, आधे दुनिया को डिस्ट्रॉय करेंगे। ये सब कहां से भाषण आ रहा है? ये सब यूएस सॉइल से आ रहा है। तो who's responsible? Why is the US keeping quiet? So he is the only person who has acted as a really responsible opposition party. Though in the opposition, raising these issues which affects national interest. And there you have Asaduddin Owaisi. We saw him also when he went with the delegation. Delegation लेके जब पूरे world tour पे गए थे सबको समझाने के लिए, he was on the forefront along with Shashi Tharoor. So now Shashi Tharoor speaks out beyond party lines. Manish Tiwari speaks beyond party lines. Chidambaram here and there करते हैं. Ahmed Patel का लड़का जो है, he has started speaking. Junior Patel has started speaking for Prime Minister Modi. He said the country is safe in the hands of Prime Minister Modi. लेकिन एक चीज है प्रदीप जी, आपकी बात में बहुत दम है जो आप बोल रहे हैं। Field Marshal Asim Munir threatened nuclear war against India in America, on American soil, and nobody from the American administration, forget the media, no one from the American administration has actually even murmured in protest.
far less give a statement saying that you cannot use US soil to threaten nuclear war against an ally. As of today, officially, we remain an ally of the United States of America. मतलब कि आप जान के आसिम मुनीर को ये बोल रहे हैं कि बेटा तेरे को लड़ना पड़ेगा भारत से, हम लोग हैं तेरे पीछे, चल लड़. Is that what you're doing? Is that what Trump is doing now? Is that what the USA has come to? You are going to instigate Pakistan against India? Asim Munir threatens India with nuclear war. Bilawal Bhutto threatens war against India. Shahbaz Sharif threatens war against India. And the Americans are quiet. Very clearly, it has been done with American instigation. That's it. Absolutely. That's terrible. Let's go ask our guests. I think we've got a couple of guests connected with us. Let's go straight across to them and let's ask them. Lakshman Zoji Sahab, namaskar. नमस्कार नमस्कार जय सिया राम सर, जय सिया राम. जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी, हर हर महादेव. हर हर महादेव. संजय द्विवेदी जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव. जय सिया राम. आज मैं जरा उल्टा शुरू करता हूं. आज मैं लक्ष्मण साहू साहब से पहले बात करता हूं. ठीक है साहब, ज्यादातर मैं लक्ष्मण साहू साहब के पास बाद में आता हूं क्योंकि वो रूलिंग पार्टी के हैं. आज मैं आपसे शुरू करता हूं लक्ष्मण साहू साहब. ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तानी फौज के अमेरिका से धमकी दे रहे हैं भारत को और पूरी दुनिया को. कहते हैं कि परमाणु युद्ध करेंगे हम जिसमें आधी से ज्यादा दुनिया को अपने साथ लेके जाएंगे. बिलावल भुट्टो बोलता है कि हम युद्ध करेंगे हिंदुस्तान के साथ अगर सिंधु नदी यानी इंडस रिवर वाटर हमको नहीं मिला तो. शहबाज शरीफ बोलते हैं कि हम युद्ध करेंगे हिंदुस्तान से. और अमेरिका में सर कोई, मैं कहता हूं फॉरगेट अबाउट अ स्टेटमेंट, कोई चूं तक नहीं करता कि भाई आप अमेरिकी जमीन पर इस तरीके से किसी और देश को, भारत जो है जो अमेरिका का एलाई है अभी भी, दैट अलायंस हैज नॉट बीन ब्रोकन येट एंड वी आर अ स्पेशल फ्रेंड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट्स व्हाट दे से. वहां से कोई प्रोटेस्ट में कुछ बोलता भी नहीं. लक्ष्मण साहू साहब ये क्या हो रहा है कि क्या ट्रंप साहब के जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं उनको तो ये लग रहा ना कि भाई 3 के 4 साल की और उनकी टर्म है, उसके बाद तो उनको रिटायर होना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि अमेरिका में तो रूल है सिर्फ 2 टर्म का रूल होता है, उसके बाद तो वो प्रेसिडेंट बन नहीं सकते. क्या ऐसा है क्योंकि उनकी जो क्रिप्टो करेंसी का हब बना दिया उन्होंने पाकिस्तान को, क्या वो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मतलब पूछ रहा हूं आपसे लक्ष्मण साहू साहब. बजाज साहब, नंबियार साहब, नमस्कार. एक बात ऐसी है, हमारे द्विवेदी साहब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. वो ऑपरेशन सिंदूर के समय जो कुछ भारत का मिलिट्री का जो प्रदर्शन हुआ है जी, वेपन्स और पूरे इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट का, पूरे युद्ध सामग्री का, जी, वो पूरे दुनिया ने देखा है. भारत के तरफ से ये ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी, इतना बड़ा कड़ा मुकाबला हो जाएगा. जो मिसाइल भारत के ऊपर रोके गए थे, भारत की तरफ जिस तरह से हमला के लिए उन्होंने तैयार किए थे, वो उनको इतनी कड़ी मात्रा में वापस गए हैं कि वो सोच भी नहीं सकते थे ऐसा कुछ होगा. यह हम सबने देखा है, सबने परखा है, सब जानते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि अभी 15 अगस्त को 2 दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी 11वें बार लाल किले से भाषण देने वाले हैं. जी, मेरे ख्याल से ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जो सलग 11वीं बार 15 अगस्त को लाल किले से बात कर रहे हैं. और जिस तरह से भारत आत्मनिर्भर होने जा रहा है, जिस तरह से भारत की उन्नति हुई है, जिस तरह से भारत पूरे दुनिया के सामने अभी पेश हुआ है, जिस तरह से भारत सक्षम होने जा रहा है सब बातों में, जिस तरह से दुनिया में भारत के सब रिश्ते जुड़े जा रहे हैं, इसका डर उनके मन में है. ये चीन में जाकर क्यों नहीं बोले?
ये रशिया में जाकर क्यों नहीं बोले, अमेरिका में जाकर क्यों बोले? क्योंकि ये जो पाकिस्तान है, ये जो युद्ध का पार्किंग स्थल बनाया हुआ है पाकिस्तान जी, का जी। सब लोगों ने, तो पाकिस्तान से भारत की तरफ से सबको मुनाफे तो चाहिए, फायदे तो चाहिए, लेकिन भारत का जो समर्थन बढ़ने जा रहा है, भारत की जो ताकत बढ़ने जा रही है, वो सही नहीं जाती है। भारत किसी के अभी अंडर काम नहीं करेगा, भारत किसी को बख्शेगा नहीं। अभी ये ऑपरेशन सिंदूर का जो मुकाबला किया गया, ये सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का तो था ही, पाकिस्तान के खिलाफ था, लेकिन पाकिस्तान का समर्थन करने वालों को बहुत बड़ी मात्रा में सबक था। पाकिस्तान में जिन्होंने उनके जो युद्ध सामग्री लाके रख दी है, जहां मिसाइल रचे हुए हैं, वो उनके फेल हो गए, उनकी पूरी बेइज्जती हो गई है। और उनकी हुई जो बेइज्जती हुई है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे जी। हैं। ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसे वो भी सोच भी नहीं सकते थे। इसीलिए भारत को कम दिखाना, भारत को अस्थिर करना, भारत की राजनीति को अस्थिर करना, और एक भारतीय संस्कृति की 11 साल से अच्छी चल रही सरकार ये डिस्टर्ब करना, इसके पीछे ये सब पड़े हुए हैं, इसके लिए ये सब तुले हुए हैं। और इनको इनकी खुद के ताकत का उनको भी अंदाजा आ गया है, और हम किस तरह से मुकाबला कर सकते हैं। हम एक मात्रा में, अगर अमेरिका हमको असहायता करता है तो दूसरे देश हमको सहायता करेंगे। ये पूरे दुनिया में भारत की सबको जरूरत है, ये दिखा दिया है। जी। भारत का मुकाबला ये देश करने के लायक पहले जैसे नहीं रही है। अभी भारत बेगर बोल के किसी देश के पास नहीं जाता है। भारत अभी आत्मनिर्भर और एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने जा रहा है, एक चौथी आर्थिक सत्ता जो दुनिया की बनने जा रहा है। अभी बना है, बनने जा रहा है क्या, और हम तीसरी आर्थिक सत्ता बनने के लिए हमारी कोशिश जारी है, और ये हम जल्दी होने वाले हैं। ये जो भारत की पूरी ये जो सक्षम सरकार है, जो भारत की मानवीय व्यवहार की नीति है, ये दुनिया अभी अपनाने लगी है, और इसलिए भारत से सब लोग डरते हैं और भारत को अस्थिर करने की सब साजिशें चल रही है। उसका ये एक उनका प्रेस स्टेटमेंट अमेरिका में जाके देना, या ऐसा एक मैं मानता हूं। साउदी साहब, मगर मोदी साहब ने क्लियर कट कहा अमृतकाल मनाएंगे। मोदी साहब ने कहा अमृतकाल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। किसानों ने सराहा, किसानों ने प्रशंसा किया कि ऐसे भी गंभीर अवस्था में मोदी साहब ने जो हमारे साथ दिया, किसानों के साथ दिया। बोले किसानों के इंटरेस्ट को हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे कितने भी प्रेशर यूएस से आए, ट्रंप कितने भी प्रेशर डालेंगे। जो मोदी साहब ने कहा कि किसानों के इंटरेस्ट को मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, किसानों ने सराहा। बोले ऐसे नेता से हम प्रभावित हैं। साहब जी साहब, इसमें दो बातें हैं जो आपने बोली, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं। एक तो पहले भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में हमारा 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन, गणतंत्र दिवस, और 15 अगस्त का इंडिपेंडेंट डे, स्वतंत्रता दिवस, ये दोनों ही राष्ट्रीय दिन बोल के मनाते थे। और झंडा लहराने का राष्ट्रीयत्व दिल में हमेशा के लिए बसाने की जरूरत थी, इसलिए उसके निर्बंध बाजू को करके, उसका डर मन से, दिल से निकालकर सबको हर घर तिरंगा और रोज तिरंगे के बारे में हमारे पास राष्ट्रीयत्व रहना चाहिए। इसलिए हर घर तिरंगा का जो अभियान चलाया, और ये जो जागृति उठी है साहब, ये देश के लिए जागृति करने के लिए जो प्रयास करने चाहिए, जो प्रयास करने चाहिए, ये सब प्रयास हमने 11 साल में पूरे राष्ट्र को सामने रखकर, राष्ट्रीय जनता को सामने रखकर, राष्ट्रीय विचारधारा को सामने रखकर किए हैं। सर, इसमें एक बात की मैं आपको याद दिलाता हूं, हर घर तिरंगा की वजह से, जैसे हमने राष्ट्रीयत्व जताने के लिए जो अनेकों प्रयास करने चाहिए थे वैसे किया, उसका एक राष्ट्रीयत्व जताने का एक प्रयास हमने पिछले बार जब अटल जी प्रधानमंत्री थे जब किया था। बात ऐसी थी कि जो युद्धों में जो शहादत जिनको मिलती थी, उनके जो शव थे वो वही वहां अंत्यविधि होता था। जब से अटल जी प्रधानमंत्री हुए,
जब दिल में जज्बात उनके थी लोगों के लिए, देश की मानसिकता के लिए, तो उन्होंने शहीदों के शव उनके गांव में जाकर वहां अंत्यविधि करना शुरू कर दिया। यह पहली बार हुआ उससे, और उसके बाद अभी लगातार जारी है। ऐसे जो प्रयास है राष्ट्रीयता के लिए, क्योंकि हमारे लिए जब शहादत लेते हैं, हमारे लिए शहीद होते हैं, उनकी जो जज्बात है नव युवकों के बारे में, नए पीढ़ी के मन में, ये उनके लिए ये जागरूक होना चाहिए, देश का भाव। इसलिए उसी तरीके का ये जो हर घर तिरंगा जो अभियान है, ये पूरे देश में चलाया जा रहा है। ये पूरे 7-8 दिन चलता है। आज भी हम जिस शहर में रहते हैं, नासिक में, एक बड़ी मात्रा में इलाके में नासिक के परिसर में एक तिरंगा यात्रा निकाली थी, मैं भी उसमें शामिल हुआ था। तो ये जो प्रयास चालू है, और सब उससे जैसा निर्बंध कोई दूसरा देश हमारे ऊपर करता है, तो हम हमारे देश को, जनता को पूरी तरह से शाश्वती देते हैं, गारंटी देते हैं कि हमारे देश के ऊपर अन्याय होने वाली कोई भी बात हम परदेशी से, दूसरे देशों के ऊपर से निर्बंध को हम मानने वाले नहीं है। हमको, हमारी जनता के लिए हम कड़े से कड़े फैसले लेंगे और कड़ा मुकाबला करेंगे इनके साथ, ऐसा तय किया है। जी, राइट, लेट मी गो टू द्विवेदी साहब। द्विवेदी साहब नमस्कार। द्विवेदी साहब, आपने सुना लक्ष्मण साहू जी साहब को, ये क्या है सर? ये मतलब कल तो श्रीनगर में भी तिरंगा यात्रा निकली है बहुत जबरदस्त तरीके से, उसके अलावा हर जगह में तिरंगा यात्रा निकली है, केरला में, तमिलनाडु में, नॉर्थ ईस्ट में, यहां तक के गढ़चिरौली में, एंड दैट आई थिंक इज श्रीनगर। लुक एट दैट इज द श्रीनगर, दैट इज द श्रीनगर तिरंगा यात्रा, जहां पर सिर्फ पाकिस्तान के झंडे दिखाई देते थे एक जमाने में, और हमारे लोगों के ऊपर पत्थर पड़ते थे। लुक एट दैट फुटेज, इट इज ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ सर। सर, ये आसिम मुनीर साहब जो हैं, इन्होंने जाकर के अमेरिका में सबके सामने भारत को धमकी दे दी, पूरी दुनिया को धमकी दे दी परमाणु युद्ध की, और इसके खिलाफ अभी तक सिर्फ और सिर्फ बहुत जबरदस्त तरीके से इंडिया अलायंस के, और इंडिया अलायंस में तो है भी नहीं वो, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बात करी है। बाकी जो लोग हैं वो क्यों बात नहीं कर रहे सर इसके बारे में? ये फील्ड मार्शल मुनीर जो है, ये बोलता है कि परमाणु युद्ध करेगा, आधी से ज्यादा दुनिया को अपने साथ लेके जाएगा अमेरिका की धरती पर। ही इज यूजिंग अमेरिकन सॉइल टू थ्रेटन इंडिया, और उसके खिलाफ अभी तक अगर कोई नॉन बीजेपी पार्टी ने, अगर किसी ने बात की है, तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बात करी है। अब आप बोलें द्विवेदी जी। देखिए राहुल जी, राजीव जी, राहुल जी नहीं सर, मेरा नाम राहुल नहीं है। राजीव जी, प्रदीप जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कोई इंडिया गठबंधन हो या कोई भी हो, कोई मोदी जी से किसी कोई ऐसा नहीं है। बार बार कहा जाता है सब मोदी जी के खिलाफ हैं, इनके सरकार के खिलाफ है। सरकार के खिलाफ कोई नहीं होता, क्योंकि ये संविधान के तहत सरकारें बनी है, और उसमें जो आप कार्य कर रहे हैं उसके विषय में जनता के बीच हम लोग जाते हैं। अब जैसे आप आइए, अभी आपने कहा साहब आसिम कुरैशी मुनीर जी ने धमकी दी है। धमकी दी कहाँ से दी? अमेरिका से। और वही ट्रंप जो आज हमारे महामहिम राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, जिनके मन में मोदी जी के बड़े अच्छे संबंध हैं। नमस्ते ट्रंप, तमाम चीजें आपने भी सुनी होंगी, तमाम चीजें कही गई थी। गुजरात का दौरा करने भी आए थे, गांधी आश्रम भी गए थे, वो चलाया था उन्होंने, हम लोग पिक्चरें देखी थी। आज की डेट में जब ट्रंप ऐसी चीजें बोल रहे हैं कि साहब यहाँ पे बहनें सुरक्षित नहीं है, माताएं सुरक्षित नहीं है, गुंडागर्द, तमाम ऐसे आरोप बुला के अपना एक कागज भेज रहे हैं यहाँ पे। सच विश्व में पहली बार ऐसा हुआ किसी देश के राष्ट्रपति के, मतलब अमेरिका से यहाँ भारत में कोई चिट्ठी, ऐसी चिट्ठी आई हो। आज भ्रष्टाचार का नाम लेते हैं आप, साहब भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए, महंगाई की मार, आपकी मोदी सरकार 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपए हम देंगे, नोटबंदी कराई तो सब नोटबंदी से हो जाएगा कि साहब अब यहाँ पे सब चीजें खत्म हो जाएंगी। अभी आपने कहा जैसे 15 अगस्त को कश्मीर में भी झंडा फैलेगा, पूरे भारतवर्ष में फैलेगा। तो राष्ट्रीय ध्वज तो हमारी शान है, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ सर, वो तो हमारी शान है।
और निश्चित एक बात जान लीजिए आप, 75 साल देश को आजाद होते हुए हैं। 75 सालों में देश की 2014 से पहले क्या किस्मत बदली वो हम नहीं देख रहे हैं, एक एक भारतीय देख रहा है कि किस हालत में हमको देश मिला था, किन परिस्थितियों में देश मिला था, जहां 50 करोड़ रुपए हमको पाकिस्तान को देने पड़े। हमारे पास ऐसी इतनी करेंसी नहीं थी कि हम उनको पाकिस्तान को पैसे देते, लेकिन किसी की जिद के पीछे, किसी के अनशन और धरने के पीछे बाद हमको पैसा देना पड़ा पाकिस्तान को। पाकिस्तान की जनता का विरोध हमसे नहीं है, लेकिन जो वहां के ISI है, जो वहां की सेना है, इनकी नस्ल में पता नहीं क्यों भर दिया जा रहा है। भारत के खिलाफ चीजें भर दी जा रही हैं। आप देखिए वहां प्रधानमंत्री कोई वही नहीं, जब चाहता सेना अध्यक्ष चाहता है तब हटा के राष्ट्रपति बन जाता है। जैसे परवेज मुशर्रफ देख रही है, तमाम उदाहरण ऐसे थे, और प्रधानमंत्री जी को फांसी सजा दे दी जाती है। इन्हीं जब चीजों को देखते हुए इंदिरा गांधी ने क्या किया था, हमारी तीनों सेनाएं बांट दी थी, एक सेनाध्यक्ष नहीं रखा, और वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष बना दिया था राष्ट्रपति जी को। आज अमृतकाल की बात हो रही है। अमृतकाल है, अमृतकाल आएगा, अमृतकाल में रहेंगे हम, अमृतकाल बनेगा। कोई हम लोग कोई देशवासियों को उसका बुरा नहीं लगता ना, देशवासी सोचते हैं अमृतकाल ना आए। दिक्कतें कहाँ से होती हैं? जब हम महंगाई बढ़ जाती है हमारी, बेरोजगारी बढ़ जाती है हमारी, और जो आप वादे करते हैं देश के साथ कि हम 2 करोड़ नौकरी आपको देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, और वो नहीं मिलते हैं। द्विवेदी जी, महाराष्ट्र चुनाव में 10 सेकंड तक, महाराष्ट्र चुनाव में आप जनता से कहते थे हम ये 10 गारंटियां हम आपको दे रहे हैं, इनका हम पूरा करेंगे, जबकि सरकार आपकी थी, ऐसा नहीं, विपक्ष में थे। आपको मालूम था कि हमारे पास कितना फंड है, वित्त मंत्री को मालूम था, आपको मालूम था, लेकिन आपने घोषणाएं कर दी। उसमें 2.5 करोड़ लाडली बहनों को 1500 रुपए दिए गए थे, आपने कहा नहीं साहब 2100 रुपए देंगे। 10 लाख बहनें जो हैं, आपने अपात्रता दिखा दी उनको कि साहब अपात्र हैं ये, इनके पास तो सब कुछ है, राशन कार्ड भी है, फलाना ढिमाका, हम इनको अभी 2100 रुपए नहीं देंगे। शिव भोजन थाली की बात की, आपने कहा नहीं हमारे पास फंड नहीं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कराने की बात आई, आपने कहा मेरे पास फंड नहीं है। तमाम ऐसी चीजें हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस तरह से इस देश को चलाया जा रहा है, इनके मुख्यमंत्री जिस तरह से चलाया जाता है, जिस चीज का ये विरोध करते थे, आज देश पर संकट है। ट्रंप लगातार प्राइम मिनिस्टर मोदी पर अटैक करते जा रहे हैं, देश पर अटैक कर हमला कर रहे हैं। उधर आसिफ मुनीर को उन्होंने बुला लिया, पाकिस्तान को उकसा रहा है। पाकिस्तान पिछले 3 दिन में लगातार 3 बार रोज भारत को धमकी दे रहा है जंग का, हम जंग करेंगे, न्यूक्लियर अटैक करेंगे, डैम तोड़ेंगे, पानी लेंगे। देश में खतरा का एक बादल मंडरा रहा है। तो क्या आपको नहीं लग रहा पूरे ऑपोजिशन और सब जुटकर एक होकर ट्रंप और पाकिस्तान का मुकाबला करना चाहिए? क्या अभी हमें विभाजन करना चाहिए? अभी संकट है प्राइम मिनिस्टर मोदी पर, बिकॉज यूएस के इंटेलिजेंस एजेंसीज CIA और डीप एसेट्स यही चाहते कि मोदी जी को पद से हटा दे। जैसे बांग्लादेश में एक वातावरण बना दिया, ऐसे इस देश में वातावरण बना के हमारे प्राइम मिनिस्टर को हटा दे। तो ऐसे जब एक स्थिति जबरदस्त खतरनाक स्थिति बन रहा है ये हमारे देश के लिए, तो ऐसे वक्त पर एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? द्विवेदी जी, मुझे हंसी आ रही, थोड़ा सा नाराज न होइएगा। बोलिए बोलिए। प्रधानमंत्री पिता के समान होता है। हाँ राजा जनता के लिए पिता का समान होता है। हाँ, ये बात आप मानेंगे नहीं मानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए मुझे, विपक्ष रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? इस देश में विपक्ष होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सबसे पहला नारा मोदी जी का क्या था? कांग्रेस मुक्त भारत। महाराष्ट्र में शिवसेना मुक्त भारत। तो क्या विष्णु के अवतार है, भगवान के अवतार है मोदी जी? अगर मोदी जी विष्णु भगवान के अवतार हैं तो विपक्ष को जरूरत क्या है भाई? विपक्ष की जरूरत क्या है इनको है? आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे, इंदिरा गांधी रही, जवाहरलाल नेहरू रहे, माननीय राजीव गांधी रहे,
जिन्होंने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का विदेश में इलाज कराया था, उनको बिना बताए बिना समझाए उनका इलाज कराया था, ऐसे से प्रधानमंत्री रहे हैं। उल्टा 2014 के बाद अगर भारत देश की स्थिति देखना चाहे, अरविंद केजरीवाल जेल, कोर्ट ने कहा साहब इनके खिलाफ कुछ मिला नहीं। झारखंड में मुख्यमंत्री जेल में, पता चला इनके खिलाफ कुछ मिला नहीं। तमाम ऐसे मैं उदाहरण दे दूं आपको। और भ्रष्टाचार मुक्त जो भारत बात कह रहे थे, आज आप देखिए जितने भ्रष्टाचारी चाहे अजीत दादा पवार हो जो 70,000 करोड़ के मालिक थे, 70,000 करोड़ के। द्विवेदी जी, प्रदीप जी ने सवाल आपसे ये पूछा कि आज की तारीख में पूरे भारत को एकजुट होकर के सामने से जो आपदा आ रही है उसका मुकाबला करना चाहिए। आप जाकर के गिना रहे हैं कि मोदी जी ने ये किया ये किया ये किया। सर वो तो सब मालूम है, सर वो तो मालूम है ना, वो तो है ही। ये बताने के पीछे हमारा मकसद दूसरा नहीं, हमारे यहाँ मकसद दूसरा है। मैं इसलिए आपको मैं क्यों बता रहा था, मैं बताता हूँ मैं आपको भी ना। मैं कहता हूँ अगर मोदी जी ने देश के प्रति अगर उनकी सच्ची सच्ची श्रद्धा होती, शाबाश, तो मतलब ट्रम्प हैज ऑलरेडी वन। उन्होंने जो मुझे एक बात कही थी, उन्होंने एक बात जो कही थी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, अगर ये बात उन्होंने कही थी तो क्यों भैया। तो इसका मतलब हम लोग लड़ मर जाएं अभी, क्योंकि आप लोग ये समझते हैं कि मोदी जी ने ठीक बात नहीं करी तो ट्रंप के सामने हम लोगों को एकजुट होकर के खड़ा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, ये कह रहे हैं। 2 मिनट राजीव जी अगर आप सुन लेंगे, मुझे समझ दीजिए, थोड़ा इसको थोड़ा बढ़ा के बोल रहे हैं ना, उसके बाद आपकी बात पे आऊंगा ना। मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ पिक्चर इस देश की। सर ये बात 11 साल की कितनी बार सुन चुके हैं सर। अब आप आइए राष्ट्र प्रेम में, राष्ट्रभक्ति में। इससे पहले भी इंडिया गठबंधन ने कहा था, जब जब आपका ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, या उससे पहले भी जब आक्रमण किया हमारे 26 लोग शहीद हुए थे, पूरे इंडिया गठबंधन ने कहा था कि हम इनके साथ में हैं। लेकिन क्या इनकी मानसिकता ऐसी है? क्या इनके विचार ऐसे हैं? इनके तो विचार ही हैं नफरत फैलाना, विभाजन करना और नकारात्मक फैलाना। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूंगा सर आपसे, अगर ऐसी प्रतिज्ञा देश की हैं तो ये मैं आपसे कह रहा हूं पूरे देश का विपक्ष फिर मोदी जी के साथ होगा। लेकिन मोदी जी किसी के साथ नहीं होंगे, ये निश्चित मान लीजिए सर। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, उनका फायदा कहाँ में है कहाँ नहीं। जब मुसीबत आ जाए तो सब उनका साथ दे दें आके, जब मुसीबत से छूट जाए तो सबको जेल भेज दें। सर ऐसा प्रधानमंत्री होता है क्या? Right, so let me go across Ashok Yadav जी। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि हम उनके साथ में हैं। सर उनके साथ में नहीं, वो प्रधानमंत्री रहे। सर ये मैंने कभी बोला ही नहीं। क्या सर ये मेरा सवाल ही नहीं था द्विवेदी जी, ये मेरा सवाल ही नहीं था। मेरा सवाल था आप देश के साथ हैं कि नहीं है, बस दैट्स इट। कि देश को एकजुट रहना चाहिए नहीं। मोदी जी आज हैं, कल नहीं रहेंगे, कल कोई और प्रधानमंत्री बनेगा, 10 सालों के बाद कोई और बनेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने क्या कहा? So sir, let me go across to Ashok Yadav जी of the Samajwadi Party। हम उनके साथ में हैं सर, मैंने फिर कहा पूरा विपक्ष साथ में। आपकी बात सुन रही, कहाँ मना कर रहा हूँ? आपकी बात आ गई सर। अशोक यादव जी नमस्कार। सर नमस्ते और सॉरी फॉर लेट। No, not at all sir. Why am I getting this noise in my ear sir? Can you please do something about it? अशोक यादव जी, जो सवाल पूछा गया था वो ये था कि भैया आसिम मुनीर साहब जो हैं फील्ड मार्शल पाकिस्तान के, जिसको फील्ड मार्शल कहा जाता है यहाँ पे, वो अमेरिका जाते हैं और अमेरिका से हमको धमकी देते हैं। यानी अमेरिकी सॉइल से, अमेरिका की जमीन से धमकी देते हैं, बोलते हैं कि मैं परमाणु युद्ध करूंगा, आधी से ज्यादा पूरी दुनिया को साथ में ले जाऊंगा, भारत को तहस नहस कर देंगे। और अमेरिका से कोई प्रोटेस्ट भी नहीं आती सर, नोबडी ऑब्जेक्ट्स आल्सो। और यहां पर भी अगर आप देखें, द ओनली पर्सन हु वाज रियली ऑब्जेक्टेड फ्रॉम एनी नॉन बीजेपी पार्टी इज असदुद्दीन ओवैसी साहब। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा ये क्या है, नाउ अमेरिकन सॉइल विल बी यूज्ड टू थ्रेटन इंडिया। आपको क्या लगता है सर, क्या ट्रंप साहब जो हैं जान करके पाकिस्तान को जान करके आगे बढ़ा रहे हैं कि एक बार फिर भारत के साथ युद्ध करें? अशोक यादव जी प्लीज। देखिए अभी मुझे लगता है कि अमेरिकन कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता है। अमेरिका में कुछ ऐसे कानून हैं
कि जो उसकी धरती पर रह करके कोई भी देश किसी दूसरे देश को परमाणु की धमकी नहीं दे सकता। एक कानून का वायलेशन है, अमेरिकन कानून है That's right, इसके sir. खिलाफ। मैं कानून का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, Right, sir, लेकिन you're मैंने right. पढ़ा था। जी, ये अमेरिकन बिल्कुल, कानून का दुरुस्त- वायलेशन है। दुरुस्त बात। इसके बावजूद वो मुनीर जो है इस तरह की खोखली बातें कर रहा है। लेकिन ये इसके पीछे बैकअप किसका है? अगर वो कानून का वायलेशन अमेरिका में रह करके कर रहा है, इट मीन्स कि उसको ट्रंप के सरकार का समर्थन है, नहीं तो उसके खिलाफ मुकदमा हो जाता है अमेरिकन कानून के वायलेशन में। तो कहीं ना कहीं ये अमेरिकन कानून का वायलेशन कर रहा है तो वहां की सरकार के सहयोग से कर रहा हो आसिम मुनीर जी। और दूसरी बात, अभी मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, इंटरनेशनल अखबार था, कि जी। उसमें लिखा था कि अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने वहां की जो कोर्ट है अमेरिका की, जिसने गौतम अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ जो समन जारी किया था, वहां पे जो फ्रॉड किए थे, वो अमेरिकी कोर्ट में वहां की अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने रिटर्न में लिख के दिया है कि चूंकि हमने जो समन इशू किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस समन की तामील नहीं करवा रही है। अब ये सवाल उठता है कि जिस ट्रंप को लेकर के माननीय मोदी जी टेक्सास में गए प्रचार करने, हर मौके पर उनको अपना दोस्त बताया, यहाँ पर तमाम भाजपा के लोगों ने हवन पूजन सब करवाया, सनातन प्रेमी, सनातन की रक्षा के लिए तमाम बातें की गई, तो ऐसी समीकरण क्या बिगड़ा? ये ट्रंप भारत का दुश्मन बन गया, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? ये बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। क्या उन तमाम कारणों में से एक वो कारण तो नहीं है जो अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने जो कोर्ट को लिख करके दिया कि हम असहाय हैं? क्या उन तमाम कारणों में से जो ट्रंप को या अमेरिका को भारत के खिलाफ खड़ा किया, उन कई कारणों में से क्या एक कारण ये भी तो नहीं है? तो इस तरह की सवाल हैं इस देश के पीछे, इस देश के लिए। और हमारे, आपको याद होगा नेताजी, जब हमारे पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने एक बात कहा था कि हमारा असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान को जब हम चाहेंगे निपट लेंगे। ये आसिम मुनीर या पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं है। इसको बैकअप कहां से मिल रहा है? इसको बैकअप मिल रहा है चाइना से, इसको बैकअप मिल रहा है अब तो अमेरिका से मिलने लगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है इसका भी फेल्योर है, क्योंकि सरकार मानती नहीं कोई बात, लेकिन हमारे फॉरेन पॉलिसी में ये लैप्सेस के कारण जो अमेरिका, जो कि हमेशा कम से कम पाकिस्तान की तरफ तो खुल के नहीं खड़ा हुआ इधर रिसेंट में कई दशकों से, लेकिन अगर वो खड़ा है हमारे खिलाफ, तो हमारे फॉरेन पॉलिसी का या हमारे तमाम जो चीजें जो मैंने गिनाई, इन चीजों में से कई चीजों का योगदान उसमें है। तो सरकार क्या, जो मोदी जी कह रहे थे अभी 2 दिन पहले कि मैं तो अपना नुकसान कर लूंगा लेकिन किसानों पे आंच नहीं आने दूंगा, व्यापारियों पे आंच नहीं आने दूंगा, और आप अडानी को और उनके भतीजों को बचाने के लिए इस देश के ऊपर 50% टैरिफ लगवाने के लिए तैयार है मोदी जी, और कह रहे हैं कि मैं अपना व्यक्तिगत नुकसान करवा लूंगा। ये देश पूछना चाहता है, ये देश जानना चाहता है कि क्या समीकरण गड़बड़ हुआ भारत और अमेरिका के बीच। उन समीकरणों में क्या ये भी एक समीकरण है या नहीं है, ये मैं आपसे जानना, आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। अशोक यादव जी, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि अमृत काल मनाएंगे, हर घर तिरंगा हम लहराएंगे, और यूपी विजन डॉक्यूमेंट 2047, योगी जी ने विजन डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश के लिए बनाया। कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी और शिवपाल जी सिर्फ आलोचना करते हैं, मगर कुछ कंट्रीब्यूशन इस विजन डॉक्यूमेंट, यूपी विजन डॉक्यूमेंट 2047 की तरफ से, आपके तरफ से कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, सिर्फ आलोचना हो रहा है। क्या आप डेवलपमेंट नहीं? यस, बोलिए। विजन का जो हिंदी में हम लोग जानते हैं अभी तक, विजन मतलब दूरदृष्टि, दूर की चीजों को पहले ही देख लेना, विजन। और ये सरकार, ये भाजपा, हम लोगों ने जितनी इतिहास की किताबें पढ़ी होगी, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, या और जो भी हिस्ट्री पढ़ी होगी, ये सारे हिस्ट्री में जाती है भाजपा, और हिस्ट्री को डिटेरियोरेट करती है, उसकी गलत तरह से व्याख्या करती है, उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास करती है, वहां से खोज को कुछ ऐसी चीजें लाती हैं जो इस देश के, प्रदेश के वर्तमान को डिस्टर्ब करने काम करता है। तो ऐसी पार्टी अगर भविष्य देखने लग जाएगी तो बड़ा मतलब आश्चर्य वाली बात है। इतिहास देखने वाली पार्टी अगर भविष्य देखने लगे, पास्ट देखने वाली पार्टी अगर फ्यूचर देखने लगे, तो हम लोग थोड़ा सा चौकन्ना हो जाते हैं विपक्ष के नाते। और दूसरी बात, जो देश की जनता ने आपको चुना है, 5 साल के लिए चुना है, तो 5 साल का पीरियड आप जस्टिफाई करिए। आप 2047 तक कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट इज डिफरेंट पार्ट।
आपको 5 साल के लिए चुना है जनता ने ना। अब 2014 से माननीय मोदी जी, 2017 से माननीय योगी जी, और 2017 से और अब 2025 हो गया, लगभग 8 साढ़े 8 साल हो गया। इन दौरान आपने जो वादे किए थे, जो विजन दिखाए थे, जैसे 2017 में जब इनकी सरकार बनी थी तो तमाम वादे किए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने करीब 47-48 वादे इनके बताए कि इन वादों का क्या, जो वादे आपने किए थे, विजन दिखाया था लोगों को, उन वादों का क्या? अगर ये सारे वादे आप डस्टबिन में डाल दिए तो फिर नए वादों का क्या? भाई हम आगे वाले वादों पर क्यों विश्वास करेंगे? आपके विजनरी डॉक्यूमेंट्स पे तो हम तब विश्वास करेंगे आपने जो बात जब कही, आप जी एक सवाल पूछ लूं सर, छोटा सा, उसके बाद मुझे लक्ष्मण साहू जी साहब के पास भी जाना है। सर, आपने एक बात कही, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट टू मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट एंड नो चैनल इज टॉकिंग अबाउट इट। ये जो आपने अडानी जी की बात करी ना, कोई चैनल इस विषय के बारे में बात नहीं कर रहा है, समझे कि नहीं? यहाँ ये हमारा चैनल ऐसा नहीं है, वी विल टॉक अबाउट इट। यहां पर ट्रंप साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया था। लक्ष्मण साहू जी साहब, सुनने वाली बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं उसके बाद आपके पास आऊंगा। लक्ष्मण साहू जी साहब और अशोक यादव जी, ये सवाल अशोक यादव जी के लिए। ट्रंप साहब ने यह भी कहा था कि भारत रशियन ऑयल ले रहा है। अब वो रशियन ऑयल को लेकर के या रशियन क्रूड ऑयल को लेकर के कितनी सच्चाई है इसमें, कितना नहीं है, दैट हैज बीन डिस्प्रूव्ड कंप्लीटली। अमेरिका खुद यूरेनियम खरीद रहा है रशिया से, यूरोपियन यूनियन खुद गैस खरीद रही है, नेचुरल गैस खरीद रही है रशिया से, जो भारत से कहीं 10 गुना ज्यादा है कीमत उसकी। तो वो ये तो बहाना है, सीधी सादी बात है। लेकिन उनका गुस्सा इस बात पर था कि जो क्रूड ऑयल हम लोग वहां पर खरीद रहे हैं, भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी, दो बहुत बड़ी कंपनियां हैं भारत की, एक गवर्नमेंट की कंपनी है और एक प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी कौन सी है आप जानते हैं कौन सी है? रिलायंस ने स्पेशली, और हमारी जो इंडियन ऑयल जो है, इन दोनों ने उस क्रूड ऑयल को रिफाइन करके वापस यूरोपियन यूनियन को भेज दिया, जिसमें इनको जबरदस्त मुनाफा हुआ है सर। ना आई डोंट माइंड, मेरे लिए तो बहुत अच्छा कि हमारे इंडियन बिजनेसमैन इतने ज्यादा स्मार्ट है, आई मस्ट से हैट्स ऑफ टू देम। माय ओनली प्रॉब्लम इज कि यार तुम्हें चीप रशियन ऑयल मिल रहा है, उसका कुछ फायदा हमारे लोगों को तो दे दो, इंडियंस को तो दो ना। 106 रुपए का यार पेट्रोल बेच रहे हो, 100 रुपए का डीजल बेच रहे हो, रशिया से इतना चीप ऑयल आ रहा है, अरे कुछ तो दो यार। अब आप बोले अशोक यादव जी, मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलो प्लीज। ये चीज मैंने पढ़ा था, जो आप कह रहे हैं, ये चीज मैंने पढ़ा है, और वो स्पष्ट क्लियर कट लिखा हुआ है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारत की जो सरकारी कंपनी है जी, एक कंपनियां, ये और सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये 3 लोग सारे मुनाफे हड़प गए। 3 लोग मिल करके, और ये प्राइवेट कंपनी भी लगभग 30 गुना 30 टाइम्स मोर बेनिफिट उसने अर्न किया रसिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के बाद। अब आप बताइए कि आप झगड़ा मोल ले रहे हो अमेरिका से, किसके लिए? रिलायंस को फायदा पहुंचाने के लिए। सरकार को फायदा पहुंचेगी तो जनता को भी फायदा पहुंचेगा, हमको सरकार के फायदे से जनता का फायदा होता है, वो अलग चीज है। लेकिन आप वो फायदे को, जो आपने कहा कि जनता को क्या फायदा हुआ, भाई हिंदुस्तान की जनता को आपने क्या दिया? रशियन क्रूड ऑयल से क्या फायदा जनता को आपने ट्रांसफर किया? ये सवाल है, और इस सवाल को आपने भी उठाया, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। इस तरह की चीजें जनरल डिबेट्स में नहीं आती हैं, इसलिए हिंदू मुस्लिम पर ही चलता है पूरा दिन। यहां पर नहीं होता सर। अशोक यादव जी, एक और चीज है, एक और चीज सुनने वाली बात है। बाय द वे, अगर मान लीजिए अमेरिका की टैरिफ्स जो है, जो उसने 50% बोला है, बोलता है वो 250% कर देगा, ठीक है सर, अगर वो हो भी गया तो मैक्सिमम लॉस जो इंडिया का होगा ना, मैं आपको बता देता हूं कितना होगा। इट विल बी अबाउट 1 बिलियन और $1.5 बिलियन, $1.5 बिलियन का होगा। लेकिन अगर रशियन ऑयल खरीदना हम लोगों ने बंद कर दिया ना, और मार्केट से लेना शुरू कर दिया, तो हमारा लॉस होगा $7 बिलियन का, $7 बिलियन। तो अभी भारत जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है कि रशियन ऑयल हम लोग खरीद रहे हैं, हमें वही खरीदना चाहिए। लेकिन लक्ष्मण साहू जी साहब, मैं आपके पास आता हूं। लक्ष्मण साहू जी साहब, आपसे एक चीज पर पूछना चाह रहा हूं। रशियन ऑयल जो हम खरीद रहे हैं ना, जो बाइडेन साहब जब यहां पर आए थे ना, G20 समिट जब यहां पर हुआ था भारत में, आपको याद होगा G20, जो बाइडेन साहब ने खुद रिक्वेस्ट किया था मोदी जी को कि यार तुम रशियन ऑयल खरीदो, जिसकी वजह से वर्ल्ड ऑयल मार्केट प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस विल रिमेन स्टेबल, वो स्टेबल रहेंगी, स्थिर रहेंगी। हम लोगों की वजह से आज की तारीख में वर्ल्ड फ्यूल मार्केट जो हैं, वर्ल्ड ऑयल मार्केट स्टेबल है। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये क्या हमारा फेलियर नहीं है
कि हम ये अमेरिकी पब्लिक को, अमेरिकन कांग्रेस को, यूएस सेनेट को, ये जो भाई साहब दिख रहे हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर अभी, ट्रंप साहब जो हैं, जिनकी विग जो है वो अजीब गरीब हो जाती है, हर रोज नई विग पहन के आते हैं सर, वो बिल्कुल राजकुमार की तरह। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि हम इनके लोगों को समझा नहीं पाए सर, ये तो हमारा फेलियर है ना, ये तो मानना पड़ेगा ना सर, दिस इज आवर फेलियर बिकॉज वी बॉट रशियन ऑयल ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द अमेरिकन्स। इट इज जो बाइडेन हु एडवाइज्ड अस टू डू सो। अब आप बोलें लक्ष्मण साहब जी साहब प्लीज। सब अपनी भारत की जो विदेश नीति है वो जब हमने तय की है वो हमने हमारे लोगों का फायदा देखा है। हमारे लोगों का नुकसान होकर हमारी कोई विदेश नीति ऐसी नहीं है कि हम लोगों का नुकसान हम सह सके और विदेशों को फायदा पहुंचा सके। कोई ये अगर हमारी सरकार आने से पहले शुगर इंपोर्ट करना, गेहूं इंपोर्ट करना, ये जो विदेश नीति है हमारी क्या किसान के फायदे में थी? हम महंगी शक्कर लेते थे, महंगा गेहूं लेते थे, आज हम वो नीति अपनाते हैं क्या? अगर उदाहरण देंगे तो फिर अलग बात हो जाएगी। हम कभी भी हमारे जनता के हित में क्या है ये सोचकर हम विदेश नीति बनाएंगे। हमको अगर कोई देश ब्लैकमेल कर रहा है और हमारे जनता को अगर उसकी हानि पहुंच रही है तो हम उनको बख्शेंगे नहीं। यह अभी सबको मालूम हो गया है, चाहे रशिया हो या चाहे चीन हो या चाहे अमेरिका हो। हमने कोई पर्सनल रिलेशनशिप पे कोई जाता नहीं है। जी, मोदी साहब और ट्रंप की दोस्ती थी। हमारे देश के लिए अगर ट्रंप की नीतियां फायदेशीर है तो हम बात करेंगे। हमारे देश के खिलाफ अगर कोई नीति है तो ट्रंप की दोस्ती क्या काम की? इसलिए पर्सनलाइज जाकर मोदी साहब और ट्रंप की चर्चा नहीं हो सकती। हमारी देश की विदेश नीति जब हमने मिसाइल के अगर देखो मेरे यादव साहब ने जो अनेक बातें कही, दो बात के लिए मैं उनका स्वागत करता हूं कि अमेरिका के कानून के तौर पर मुनीर वहां पे ऐसी बात नहीं कर सकता है। तो ये बात उन्होंने जो ये सच बात कही। ये अमेरिका का जो इंसल्ट हुआ है ना, वेपन के बारे में, क्षेपणास्त्र के बारे में, पाकिस्तान के हमारे कड़े मुकाबले के बारे में, यह अमेरिका सह नहीं सकती है। अमेरिका की बहुत बेइज्जती हुई है इसकी वजह से, और वो अपनी बेइज्जती सहने की क्षमता, ताकत ट्रंप में या अमेरिका में नहीं है। पूरी दुनिया में उनकी हंसी हो गई है उसकी वजह से। और भारत अभी जो सक्षम होने जा रहा है, समर्थ होने जा रहा है, इसके लिए हमको तकलीफ में लाने की कोई भी साजिश, वो सब साजिशें उनकी जो चल रही है, उनको सहायता करनी या नहीं करनी है, देश के साथ खड़ा रहना है या उनके साथ खड़ा रहना है, या उनका कहना सच मानना है, यह हमारे विपक्षी दलों के नीति के ऊपर निर्भर होता है। हम देश में एक है, हम आपस में अलग अलग है, लेकिन अमेरिका का ट्रंप जब कह रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं। इतनी कहने की दानत हमारे विपक्षी दलों में आनी चाहिए। साहू जी साहब, पाकिस्तान का कोई भी नेता अगर हम क्या कह सकते हैं? अगर पाकिस्तान का फील्ड मार्शल वहां जाके ऐसा कहता है, अगर हम मिसाइल पे हमला करेंगे, हम ये कह सकते हैं वो मिसाइल का बटन दबाने से पहले पाकिस्तान पूरा जिंदा रहेगा। ये उनकी हैसियत है क्या आज भारत के सामने? उसके बारे में यादव साहब ने एक अच्छा बोले कि हमारे सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। ये बातें मुझे लगता है कि देश की जनता के हित में है, वो हमारी विदेश नीति होगी, चाहे कोई भी देश के साथ हो। सर एक छोटी सी जानकारी, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, हमारे देश के ऊपर, हमारे किसान के ऊपर कोई भी निर्बंध आएगा तो हम सह नहीं सकेंगे, हम सह नहीं करेंगे। सर एक प्रैक्टिकल बात कर लें। एक शख्स है जिनका नाम है जेम्स मिलर। जेम्स मिलर, ये जरा नाम याद रखिएगा। अशोक यादव जी, संजय द्विवेदी जी और लक्ष्मण साहू जी साहब। ये जेम्स मिलर साहब जो हैं, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट के ये जनाब वो हैं एडवाइजर। ही इज ऑल्सो आवर लॉबिस्ट, इंडिया के लॉबिस्ट हैं ये व्हाइट हाउस में। We have hired him for $150,000 a month. India pays him
$150,000 a month to lobby for India. लक्ष्मण साहू जी साहब, क्या ये पूछना अनिवार्य नहीं है कि भैया क्या कर रहा है तू? अरे यार, $1.5 लाख ले रहा है महीने के, तू कर क्या रहा है हमारे लिए? आपको लगता नहीं कि सवाल पूछना चाहिए? अदरवाइज वी शुड हायर सम अदर लॉबिंग फर्म, किसी और को हायर कीजिए। आप बताएं लक्ष्मण साहू जी साहब। ये सब इसके बारे में तो पूछेंगे ना, जो हमारे जी देश के उनके साथ में जो डील करने वाले लोग हैं, जी। एडमिनिस्ट्रेशन भी है, मंत्री भी है, ये पूछेंगे उनको। साहू जी साहब, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, उद्धव ठाकरे जी, एक संघर्ष चालू है वोट चोरी के खिलाफ, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। मोदी जी सीरियसली नहीं ले रहे। बार बार इलेक्शन कमीशन को चेतावनी कि इतने सारे लोग वोट शेयर किस प्रकार से, कोई गायब है, कोई मरा हुआ है, वो जिंदा है, तो क्या चल रहा है? लोकतंत्र को बचाने के लिए जो संघर्ष चालू है, साहू जी साहब कैसे देखते हो आप? क्या जरूरी नहीं है कि जो जिसका नाम नहीं है, नहीं होना चाहिए, वो है, जो है वो मरा हुआ दिखा रहा है? तो किस प्रकार से देखते हो साहू जी साहब इसको? अब इसमें 3 बातें हैं। एक तो चुनाव आयोग की जो गलती है, चुनाव आयोग उसका जवाब देगा, उसने जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं। दूसरी बात ऐसी है, चुनाव आयोग कोई आज पहली बार सामने आया नहीं है। चुनाव सिर्फ कोई महाराष्ट्र के नहीं हुए हैं आज तक, इससे पहले लोकसभा के भी चुनाव हुए ना, और ये राज्यों के चुनाव हुए। और चुनाव के समय में मुझे, जहां तक मैं राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूं, पदाधिकारी हूं, ऑफिस होल्डर हूं, तो मुझे इतना मालूम है कि कोई भी जब चुनाव डिक्लेयर होता है तो चुनाव की लिस्ट डिक्लेयर होने की तारीख होती है। लिस्ट के ऊपर ऑब्जेक्शन लेने के लिए उसकी एक डेट डिक्लेयर होती है। उसके बाद फाइनल लिस्ट जब लगती है वो भी डिक्लेयर होती है। उसके बाद उसके चुनाव अधिकारी सब दलों को उस समय बैठक के लिए बुलाते हैं। सब दलों के प्रेसिडेंट को उनका लेटर आता है, सब दलों के प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वहां साइन करके जाते हैं, हमको मीटिंग में बुलाया। उसके बाद में बीएलए और बीएलओ रहते हैं, बूथ लेवल एजेंट और बूथ लेवल ऑफिसर जो होते हैं, सब जगह होते हैं। उनके तरफ से जो जो वोटर लिस्ट बनाया जाता है वो भी होता है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिए जाते हैं, वो भी होते हैं। एक एक महीना समय, अगर आपका कोई नाम गलत है, आपका कोई एड्रेस बदलना है, आपकी कोई उसके लिए भी एक समय दिया जाता है। ये सब हम जानते हैं। और उसके बावजूद जब जिस दिन मतदान होता है, वोटिंग होता है, उस दिन हर बूथ में हर पार्टी के दल को बीएलए बैठाने की पहले से फोटो, तस्वीर के साथ, नाम के साथ, एड्रेस के साथ, नंबर के साथ वहां बिठाया जाता है। जो वोटिंग होती है उसके बाद में शाम को जब मशीन क्लोज हो जाती है, वो बीएलए का उसके ऊपर साइन लिया जाता है। काउंटिंग के दिन बाद में काउंटिंग के समय वहां वो दल का प्रतिनिधि रहता है। ये जो सिस्टम है, ये कोई आज नहीं हुई है, पहले से चल रही है। लेकिन भाजपा जीत रही है, इसलिए चुनाव आयोग के ऊपर ऑब्जेक्शन लेने का और हमारी संस्था को बदनाम करने का ये कोई ठीक नहीं लगता है। हम हारे थे ना, हम भी 50 साल हारते आ गए। इन्होंने इससे 50 साल इन्होंने क्या किया? हमने हारने के बाद कभी चुनाव आयोग को दोष नहीं दिया, हम जनता में गए, विश्वास हासिल किया। आज हम 10 साल सत्ता में है, 50 साल सत्ता में रहने के बाद आपको चुनाव आयोग नजर नहीं आया? दूसरे चुनाव, बंगाल में चुनाव आयोग नहीं था, केरल में चुनाव आयोग नहीं था, क्या कर्नाटक में चुनाव आयोग नहीं था? आज चुनाव आयोग के ऊपर शक करना, चुनाव आयोग को बदनाम करना, ये जो साजिश है हमारे गवर्नमेंट को अस्थिर करना, जो स्थिर सरकार चल रही है उसको अस्थिर करने के लिए कोई भी मौका ये लोग छोड़ते नहीं है। ये हमारी सरकार की कोई भी एजेंसी, अरे इन्होंने मिलिट्री को सबूत मांगे, आपने हमला किया तो हमको सबूत दो। इसके से ज्यादा क्या होता है? लेकिन मुझे लगता है चुनाव आयोग के ऊपर अगर उनकी जो टेक्निकली जो मिस्टेक है वो तो सुधारनी चाहिए। उसमें सभी दलों की मांग यही हो सकती है, हम भी यही कर सकते हैं। चुनाव आयोग को किसने बख्शने की क्या जरूरत है? लेकिन चुनाव आयोग का नाम लेकर सरकार अस्थिर करना, बाहर का वातावरण खराब करना और हम बहुत धुले चावल के जैसे हैं ये बताना, अरे इनके गलती की वजह से इनको जनता ने हराया है, ये क्यों नहीं मानते? ये पहले मान्य करो कि जनता के साथ हमने गद्दारी की,
जनता के साथ हमने खिलवाड़ किया, जनता का एजेंडा हमने चलाया नहीं, जो जो मैनिफेस्टो दिए उसके ऊपर इन्होंने काम नहीं किया। जनता का विश्वास खत्म करने के बाद अगर ये चुनाव आयोग को सिर्फ दोष देते हैं तो ये ठीक नहीं होगा, मुझे लगता है। सौजी साहब, एक छोटी सी बात है जो आज हुआ है, वही हो सकती है सर, जो आज हुआ है उसके बारे में भी अगर मैं चाहूंगा कि आप उसके बारे में जरा टिप्पणी करें। उसके बाद मैं चाहूंगा द्विवेदी साहब उसके बारे में बोले, और उसके बाद अशोक यादव जी। राहुल गांधी साहब ने कहा है कि आज मुझे इलेक्शन कमीशन की वजह से मुझे बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है कि ये उपलब्धि है कि आज मुझे काफी लोग जो मृत हैं उनके साथ चाय पीने का मौका मिला। इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में वो डिसीज्ड हैं, मृत घोषित कर दिया गया है उनको, और उनके साथ आज मैंने चाय पी है। सर वो देखिए, वो जो ये लोग हैं जो आज राहुल गांधी के साथ बैठे हैं, ये सब जो हैं अपनी अपनी वोटर्स लिस्ट में इनको मृत घोषित किया गया है। तो ये तो यहां तो इलेक्शन कमीशन को सामने आना चाहिए ना बोलने के लिए कि भाई यहां गलती हुई है। यहाँ पे सौजी साहब, बिल्कुल इसके साथ कोई दो राय नहीं हो सकती जी। जो मृत मतदाता है उनका नाम लिस्ट में होगा तो जाना चाहिए, और उसके ऊपर अगर वोटिंग हुआ होगा वो बात और गंभीर है। ये चर्चा करने के लिए कुछ भी मुद्दे मत निकालो, ये छोड़ो, ये कोई भी नहीं मानेगा। और जो जीवित है उसको मृत आदमी का अगर मतदान हो गया होगा तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन ये वोटिंग के सब ये इलाज करने के बाद कांग्रेस के 40 के 400 नहीं होने वाले हैं। राहुल गांधी को I agree with you sir, कांग्रेस का मतदान आंकड़ा बढ़ने के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार नहीं है, उनकी नीतियां जिम्मेदार है। लेकिन जो जीवित हैं उनको तो मृत घोषित नहीं कर सकते ना सर। ये देखो, ये तो मृत घोषित लोग हैं जो बैठे हैं अभी राहुल गांधी के साथ, ऐसा उनका कहना है। संजय द्विवेदी जी, आप काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे थे जी, बोलिए। आता हूं आपके पास लक्ष्मण साहब साहब, ये प्लेंटी ऑफ टाइम, मैं आता हूं आपके पास। सर दो तीन चीजें हैं। बोलिए सर। मनमोहन जी की सरकार थी सर जी, मैं उनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ सर जी। कि चार आज जो क्रूड ऑयल के दाम है उससे 4 गुना ज्यादा क्रूड ऑयल का दाम था, लेकिन उन्होंने 50, 55, 56 से ज्यादा पेट्रोल का दाम नहीं होने दिया। उन्होंने देश के लिए भले कर्ज लिया हो, जो आप लोग कहते हैं कर्ज लिया, वो 2026 में देना, मैं सैल्यूट करता हूँ सर मनमोहन। कर्ज नहीं लिया था, कर्ज नहीं लिया था वो सर, ऑयल पूल अकाउंट था जो हमें ऑयल कंपनीज को वो पैसा वापस देना था और अभी भी देना है, वो ड्यू है सर, वो अभी भी पैसा ड्यू है। वो तकरीबन मैं आपको फिगर भी दे देता हूं। अरे लक्ष्मण साहब जी साहब, एक सेकंड, 1,10,000 करोड़ अभी वापस करना है ऑयल पूल अकाउंट का। जो क्रूड ऑयल की प्राइस हम लोगों ने 65 रुपए पे रखी ना, 65 और 70 के बीच में, वो अभी पैसा वापस देना है सर। वो आएगा अभी 3 साल बाद फिर आएगा। जी बोलिए सर, बोलिए मेरी बात सुन लीजिए, आपने बिल्कुल बात सही कही जी। लेकिन देश में तो नहीं, उन्होंने देश की जनता को तो उन्होंने मरने नहीं दिया ना। 106 रुपए में पेट्रोल तो नहीं किया सर ना। आज क्रूड ऑयल 4 गुना सस्ता, 4 मतलब 1/4 है, तब से 4 गुना कम हो गया है। अब आप कह रहे थे रूस से सस्ता क्रूड ऑयल आप ले रहे हैं और उसको तो आप विदेश में बेच दे रहे हैं सर, क्योंकि देश की जनता पागल है सर क्या? जी चलिए, उन्होंने तो कर्ज ले लिया, आप तो रूस से सस्ता ले रहे हैं, विदेश में क्यों भेज रहे हैं भाई? आप क्यों मुनाफा कमा रहे हैं? 4 गुना 10 गुना मुनाफा। और कौन कर मुनाफा कमा रहा? क्या सरकारी कंपनी मुनाफा कमा रही है? अगर सरकारी कंपनी मुनाफा करा रही होती तो एक बात मान मिलती, सब सरकार के पास पैसा जा रहा है। और ये पैसा किसके पास जा रहा? एक उद्योगपति के पास जो खासम खास हैं। आप आइए, आपने कहा साहब ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब पाकिस्तान कांपने लगा, घबरा गया ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद, वो घबरा गया। वहां से खबर आई साहब ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दीजिए, तो हमने देखिए बंद कर दिया, मैं जीत गया। सर अब क्या हुआ आसिफ मुनीर को? 3 दिन से वहां अमेरिका धमकी दे रहे परमाणु बम गिराने की, और कहां धमकी दे रहे हैं? वही अमेरिका है जो भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के बहुत खास थे। तो क्या विदेश नीति यही आपकी है? विदेश नीति सिर्फ कहते हैं क्या कि 4 दिन पहले जो आपका दोस्त हो और 4 दिन बाद आपका दुश्मन बन जाए? ये कैसी विदेश नीति है और कैसा देश चलाने का आइडिया है? मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। शायद ये चीज आपने आज से पहले
2014 से पहले कभी नहीं सुनी होगी। मैं वो उदाहरण दे रहा हूं आपको कि ये स्थितियां जो आज पैदा हुई हैं कि साहब अब आप मुंह में मलाई लेके निकलो, मुंह तो कहो देंगे अरे हटो साहब हम तो सब कुछ है, अंदर खोखला है। तो मेरी अनुरोध है जी। कि भैया देश को खोखला मत होने दीजिए। दूसरी बात, जब संयम है कोतवाल तो डर काहेगा। अमेरिका में जब ट्रंप जी यासीन मुनीर के साथ बैठे हुए हैं तो काहे भैया FIR होगी, काहे कानून उनके याद दिलाएंगे। ये बात मैंने पहले भी कही। और चुनाव की बात आप कर रहे हैं, चुनाव को हम बदनाम कर रहे हैं। भाई हम क्यों बदनाम कर रहे हैं चुनाव को? मतलब आप विपक्ष में रहो तो सिलेंडर लेके डांस करो, सिलेंडर लेके आप डांस करो, आपकी एक महिला नेत्रियां डांस करें और चूड़ियां मैंने मनमोहन सिंह को, और हम अपने मुझे कुछ बोल भी ना। अच्छी मुसीबत है सर। मतलब आप तो ऐसा कर रहे हैं साहब, हम मुसाले को उठने नहीं देंगे, इनको बैठने नहीं देंगे, कहीं जहां होगा उनके लात मार देंगे। ये तानाशाही चल रही क्या? अरे चुनाव की अगर कोई गलती की है, 5 लाख वोटर बढ़े थे हमारा चुनाव में, लोकसभा में, तो 50 लाख वोटर कहां से आ गए? मैं यही पूछना चाहता हूँ, कहां 50 लाख वोटर आ गए? जवाब दे सर। जवाब एक प्रोसेस होता है ना द्विवेदी जी, एक लीगल प्रोसेस होता है इलेक्शन में प्रोटेस्ट करने का। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं बात, अशोक यादव जी शायद इस बात को मुझे इस बात को तस्लीम करेंगे कि जैसे समाजवादी पार्टी ने, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, देयर आर अबाउट 10 सीट्स इन उत्तर प्रदेश लोकसभा की। अगर मैं गलत बोल रहा हूं अशोक यादव जी तो उसका सुधार कर दे। जहां पर पोस्टल बैलेट्स में धांधली हुई है, ऐसा कहा गया है समाजवादी पार्टी द्वारा, और समाजवादी पार्टी ने विद इन द टाइम लिमिट पूरी एविडेंस दे दी, एक एक चीज दे दी कि इतने पोस्टल बैलेट आए, इतने वैलिड डिक्लेयर किए गए, इतने इनवैलिड हुए, जिसकी वजह से तकरीबन, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है 8 सीट है कि 10 सीट है जिसमें फर्क पड़ा। बीजेपी की शायद 8 या 10 सीट उससे ज्यादा आई। बट whatever will be the final decision, समाजवादी पार्टी ने प्रोसीजर फॉलो किया, प्रोटेस्ट किया अंडर द वेरियस सेक्शंस अवेलेबल अंडर द इलेक्शन कमीशन। कांग्रेस जो है सर कांग्रेस प्रोटेस्ट ही नहीं करती है। कांग्रेस अगर आप एप्लीकेशन नहीं भेजेंगे तो क्या करोगे आप मुझे बताओ। अब आप बोले। मैं बात पूरी कर लूं अपनी। बोलिए सर, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। मैं देखिए, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं आपको, कौन कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन हम प्रोटेस्ट कराए ना कराए, लेकिन सामने वाले को तो दिखना चाहिए सर, ईमानदार। नहीं दिखेगा सर, क्यों दिखेगा? ईमानदार दिखना चाहिए ना सर। अब मेरी बात, संविधान क्यों बनवाते, चुनाव क्यों बनवाता सर? हम पार्टी रजिस्टर कराने जा रहे हैं, हम कह रहे साहब मैं एक पार्टी रजिस्टर कर रहा हूँ, तो चुनाव कहता साहब संविधान बनाइए, इतने ये होंगे, अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, ये होगा, इतने हुए, ये उसमें शर्तें होंगी, ये इस तरह से बनेगा, और हम संविधान वहां जमा करते हैं। इसके बाद चुनाव कहता भाई 5% वोट जब आपको मिलेंगे तो ये चुनाव चिन्ह में आपका रजिस्टर्ड कर दूंगा, जो परसेंटेज चुनाव होता। 4 राज्यों में अगर मिलेंगे आपको तो हम, जैसे आपका अभी आप हमारी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय दल बन गई, वो हम कर देंगे। लेकिन सर एक बात बताइए, विधायक चले जाएं और पार्टी टूट जाए, पार्टी आप तोड़ दें और नाम दे दें, सबसे बड़ी बात ये सर है। मैं चुनाव की बात कर रहा हूं आपसे, चुनाव का अधिकार है, पार्टी का नाम देने का नहीं सर। हाँ, चुनाव चिन्ह देने का अधिकार है सर, क्योंकि पार्टी रजिस्टर्ड होती है आपके प्रदीप नामयाल के नाम से, संजय द्विवेदी के नाम से है, पार्टी हमारी है। अगर इसमें कोई डिस्प्यूट हुआ है तो पार्टी का फ्रीज कर सकते हैं, पार्टी का नाम आप खत्म कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, जैसे आपने किया रामविलास पासवान के साथ, द्विवेदी जी के साथ किया आपने। तमाम ऐसे मैं उदाहरण दे देता हूँ। द्विवेदी जी, राहुल गांधी जी किसी एक को नहीं दे सकते हैं वोट चोरी का इल्जाम, लेकिन क्या हुआ चुनाव ने? वो बात यह है कि वोट चोरी का इल्जाम आपने किया है बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के ऊपर, मगर आप ये भी बोल रहे हो कि एसआईआर स्क्रैप करो, एसआईआर स्क्रैप, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन स्क्रैप करो, ये आपका डिमांड है कांग्रेस का। आपका डिमांड कांग्रेस का है कि आप इलेक्शन कमीशन बीएलए से कुछ डिटेल्स नहीं मांग सकते, तो आप नहीं, आप एसआईआर को स्क्रैप करने का डिमांड कर रहे हो, आप बीएलए से कुछ इंफॉर्मेशन नहीं, तो फिर अमेंड कैसे करेंगे वोटर लिस्ट? वोटर लिस्ट अमेंड कैसे होगा द्विवेदी जी? ये मरा हुआ को कैसे निकालेंगे वोटर लिस्ट से, जब आप बोलते हैं एसआईआर को स्क्रैप करो? द्विवेदी जी, ये कॉन्फ्लिक्टिंग है,
कॉन्फ्लिक्टिंग है ना कि आप बोल रहे हो कि इलेक्शन कमीशन एक्शन भी लो, बोल रहे हो कि स्क्रैप मत करो एसआईआर को, कैसे आप जस्टिफाई करोगे इसके? क्या क्या आप बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं अशोक यादव जी से पूछता हूं। अशोक यादव जी, कांग्रेस का ये डिमांड है कि आप इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहे हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, एट द सेम टाइम डिमांड ये भी है कि एसआईआर को स्क्रैप करो, आप बीएलए जो बीएलए होता है बीएलए 2 से उनसे डिटेल्स मत मांगो, तो फिर अमेंड कैसे होगा? वोटर लिस्ट में जिसका निकलना है, ऐड करना है, कैसे करेंगे? अब एसआईआर स्क्रैप करने के बाद डिमांड करोगे तो? अशोक यादव जी, देखिए, एसआईआर का ऑब्जेक्टिव क्या इलेक्शन कमीशन बता रहा है? एसआईआर का ऑब्जेक्टिव इलेक्शन कमीशन जो आप बता रहे हैं वही बता रहा है कि हम वोटर लिस्ट को सही करना चाहते हैं। और एसआईआर के पीछे मंशा क्या है, सरकार की मंशा क्या है, चुनाव आयोग की मंशा क्या है? एसआईआर के पीछे मंशा, बिहार में एसआईआर होगा, 1 अगस्त को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल अपलोड कर दिया गया और उसके बाद पता चला 65 लाख लोग बाहर हैं, इसमें 22 लाख लोग क्या पाए गए, शायद डिस्प्लेस हो गए, उनको मरे हुए, ट्रेस नहीं किया गया yes। या डेड थे, कुछ ऐसा था। मतलब कुल मिला के 65 लाख लोगों का था। हाँ। पहली बात कि 65 लाख लोगों का जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे डिटेल मांगा ईसीआई से कि आप बताइए 65 लाख लोगों का जो एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो एनजीओ है उसको आप नाम बता दो कि 65 लाख लोगों को आपने किन किन लोगों को हटाया, क्यों हटाया? इलेक्शन कमीशन ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1960 के तहत बताया कि हम आपको नहीं दे सकते। ये बात इलेक्शन कमीशन किससे कर रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट से कह रहा है कि हम आपको डेटा नहीं दे सकते, हमारा आरोपा एक्ट 1960 के तहत अलाउ नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट इस देश के सरकार से पारित कानून, राष्ट्रपति से हस्ताक्षरित कानून को आर्टिकल 142 के तहत उसकी जो कंप्लीट जस्टिस के लिए उसके कानून को भी रोक सकता है। अगर उसको लगा कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है तो उस कानून को भी रोकने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। उस सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम आपको नाम नहीं बताएंगे। ये एसआईआर के बाद की स्थिति है। दूसरा रीजन आपको बताऊं, एसआईआर के बाद बिहार में 2 डिप्टी सीएम, एक पूर्व डिप्टी सीएम, एक वर्तमान के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी, एक तेजस्वी यादव, दोनों लोगों का पता है, पूरा देश को पता है, 2 वोटर आईडी। इसके एसआईआर के बाद भी 17 लोग ऐसे जिनको जोगेंद्र यादव कल सुप्रीम कोर्ट में लेके पहुंच गए कि ये चुनाव आयोग की लिस्ट में ये लोग मारे जा चुके हैं, ये जिंदा हैं, इनको हम सुप्रीम कोर्ट लेके आए हैं। तो आप ये बताइए, एसआईआर के बाद अगर ये काम हो रहा है कि 65 लाख लोगों को आप जबरदस्ती बाहर कर दे रहे हो, उसका रीजन नहीं बता रहे हो, उसका नाम नहीं बता रहे हो, और एक चमत्कारी का और काम हुआ, 1 अगस्त को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल अपलोड होता है और 9 या 10 अगस्त के रात को जब राहुल गांधी जी ने तमाम एलिगेशन लगाए उसके बाद वो दिखना ही बंद हो गया। और उसका दूसरी कॉपी, स्कैन कॉपी, जो मशीन रीडेबल जो डिजिटल वोटर लिस्ट होती है, जो कि कोई भी व्यक्ति उसको ओपन कर सकता है, देख सकता है कि मेरा नाम है कि नहीं है, उस फॉर्मेट को चुनाव आयोग हटा देता है, उसकी स्कैन कॉपी अपलोड कर देता है। स्कैन कॉपी आपको पता ही है कि 5 टाइम्स मोर स्पेस लेती है और उसमें विजिबिलिटी इतना कम है, कोई व्यक्ति अपना नाम नहीं पढ़ पाएगा, अपनी फोटो नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो चुनाव आयोग एसआईआर के पीछे उसकी मंशा ये है कि आप जबरदस्ती लोगों के नाम काट दो, पहचान करके ये विपक्ष के वोटर हो सकते हैं, उनके नाम काट दो और नाम काटने का रीजन बताओ। और उसके बाद अगर हमको ये है कि हमारा नाम नहीं इसमें है, हम खोजना चाहें तो हमारे पसीने छूट जाए खोजने में, क्योंकि मशीन रीडेबल फॉर्मेट को हटा दिया गया है, स्कैन कॉपी हटा दिया गया। तो ये सारे रीजंस हैं जिसके वजह से हम लोग एसआईआर स्क्रैप करने की बात कर रहे हैं। अशोक यादव जी, एक छोटी सी बात है आपके सामने। मान लीजिए ये कि भाई ये दैट दिस एंटायर मूव इज डायरेक्टेड एट द ऑपोजिशन, अगर ये छोड़ दिए एक मिनट के लिए, इसको साइड में रख दीजिए। हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ वेरी फेयर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशनली इंस्टीट्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ वेरी फेयर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ये गलतियां दिख रही हैं, let us call them technical glitches, let us say that election commission of India is not doing what it is supposed to be doing, तो what is the problem sir? मेरा ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फिर तकलीफ क्या है? अगर मान लीजिए आप हो गए, लक्ष्मण सौजी हो गए, संजय द्विवेदी जी हो गए, प्रदीप नंबियार जी हो गए, मैं हो गया, हम लोग ये कहते हैं कि भाई आपके काम में शायद ये गड़बड़ है या इसको सुधार कर लीजिए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुधार करने में मुझे लगता है कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं अशोक यादव जी? देखिए, आपने सही कहा कि इलेक्शन का जिसे गलती होती है, गलती या मिस्टेक जिसको कर सकते हैं, अननोइंगली
लेकिन नोइंगली अगर कोई गलती करेगा, जानबूझकर एक साजिश के तहत गलती करेगा, फिर उस गलती को क्यों सुधारेगा? क्योंकि उस गलती के पीछे उसकी मंशा छुपी है, हिडन एजेंडा है उस गलती को करने के पीछे, तो उसको इलेक्शन कमीशन नहीं सुधारेगा। इसीलिए तो कोर्ट में जाना पड़ा। अगर इलेक्शन कमीशन सुधार देता तो कोर्ट में जाने की नौबत क्यों आती? ये देखिए, हमारे देश के चुनाव आयोग के पास ये एक मिरेकुलस पावर है, एक चमत्कारी शक्ति। मुझे लगता है भगवान के पास ही वही पावर है कि किसी भी मृत आदमी को जिंदा कर दे या जिंदा आदमी को मृत कर दे। तो ये तो चमत्कारिक पावर है हमारे देश के चुनाव आयोग के पास। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं भी नॉन बायोलॉजिकल, और उन्हीं के अंडर में काम करने वाला चुनाव आयोग मतलब भगवान की भूमिका है कि मरे हुए को जिंदा कर देगा, जिंदे को अशोक यादव जी, तो इस तरह की चीजें हो रही। अशोक यादव जी, मगर ओमर अब्दुल्ला आपके घटक दल के पहले से था। उनका कहना है कि हम जब जीत रहे हैं, तो उन्होंने आलोचना किया राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी जिस प्रकार से एक मूवमेंट चला रहे हैं, ओमर अब्दुल्ला ने उनका आलोचना किया कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम जब जीते, मैं सीएम बना हूं और मेरा वोट शेयर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि असेंबली के बाद जिस प्रकार से लोकसभा के बाद उनका वोट शेयर बढ़ गया जब बुरी तरह हारा था लोकसभा में, और ही डजंट एग्री। दूसरा, कर्नाटक के मिनिस्टर जिसको निकाल दिया था रामन्ना, उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट तो सबके पास था, कर्नाटक सरकार कांग्रेस का था, जब ड्राफ्ट प्रपोजल आया पूरे वोटर लिस्ट का तभी आपको एक्शन लेना चाहिए था। आपने क्या किया? रामन्ना को निकाल दिया, मिनिस्टरशिप से निकाल दिया। तो क्या ऐसे लग रहा है कि आपका एक मोटिवेटेड कैंपेन चल रहा है? बिकॉज ओमर अब्दुल्ला हो गया, राजन्ना हो गया, एक एक लोग सच्चाई को लेकर सामने आ रहे हैं। तो कैसे जस्टिफाई करोगे कि आपका भी ये इलेक्शन स्टंट नहीं है? जैसे अमित शाह कह रहा है कि आपको मालूम है हारने वाला है, तो उससे पहले मूवमेंट चलाओ, इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर डालो, बिहार जाने वाला, यूपी जाने वाला। कैसे देखते हो आप? देखिए प्रदीप जी, बात उमर अब्दुल्ला जी की नहीं है और रमन्ना जी की नहीं है। बात यह है कि जो एलिगेशन राहुल गांधी जी ने लगाया, जो बेंगलोर के सेंट्रल बेंगलोर के महादेवपुरा असेंबली का पर्टिकुलर और जयराम रेड्डी जो कि भाजपा के कार्यकर्ता, उसके मकान में 80 वोटर पाए गए, उसके मकान में सिर्फ एक कमरा है सर, और वहां पर इंडिया टुडे के जो पत्रकार गए और फैक्ट चेक किए, वो सही पाया गया। दूसरा, आदित्य श्रीवास्तव विशाल सिंह उत्तर प्रदेश के, जिनका एपिक नंबर सेम, 3 जगह वोटर पाए गए। तो अच्छा, इसके अलावा जो मरे हुए लोग, जो जिंदे लोगों को मार दिया, ये सारे सबूत अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं तो फिर कौन क्या कह रहा है, ये बातें तो गौण हो जाती हैं। मेन बात रह जाती है सबूत क्या कर रहे हैं, फैक्ट चेक क्या कर रहा है। फैक्ट चेक में उनकी सिलसिलेवार कई बातें राहुल गांधी जी की फैक्ट चेक में सही साबित हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एग्री किया। कल जोगेंद्र यादव को थैंक यू बोला सुप्रीम कोर्ट कि कोर्ट जो भी डिसीजन ले, लेकिन आपके आर्गुमेंट्स बिल्कुल सही हैं, उन आर्गुमेंट्स को हम लोग थैंक यू बोलते हैं। लेकिन सर, अशोक यादव जी, क्या कर रहा है? अशोक यादव जी, इफ द सुप्रीम कोर्ट इज सो इंक्लाइंड, लेट्स बी वेरी क्लियर, अभी आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, राहुल गांधी जी भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो कहा कि भैया एफिडेविट दो, उसके बाद बात करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। आई होप दे गो टू द सुप्रीम कोर्ट। नाउ दिस इज द सेम सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने रूल किया, चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि भाई कल तक अगर मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की लिस्ट नहीं आई तो मैं सबके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दूंगा। जबकि हरीश साल्वे साहब जो उनके लॉयर थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, वो बोल रहे थे कि भाई हमें कोलेट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, 3 महीने लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि भैया सारी चीज आजकल डिजिटल फॉर्मेट में होती है, वी वांटेड बाय 5 o'clock टुमारो इवनिंग। 5 o'clock टुमारो इवनिंग का लिस्ट आ गई। तो सर what prevents the Supreme Court from passing such an order? Supreme Court can pass such an order कि इलेक्शन कमीशन आप लोग कर क्या रहे हैं? आप जान करके, मैं तो ये मान करके चलता हूं, आप जान करके सरकार की छवि खराब क्यों कर रहे हैं? Why are you destroying your own credibility? आप 1, 2, 3, 4 इस तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कीजिए। What prevents the Supreme Court from passing such an order, sir? अशोक यादव जी, देखिए अब राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट इस देश की सुप्रीम अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, और उसके ऊपर हम लोगों की हैसियत नहीं कि कमेंट करें, और हम लोग अपना पक्ष रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो मजबूत से मजबूत अपना पक्ष हम रख सकते हैं, उस पक्ष के आधार पर, और हम लोग उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस करेगा इस देश की। जो आप अगर लोकतंत्र को अगर ह्यूमन बॉडी मानिए, तो जो इलेक्शन कमीशन है वो हमारा ह्यूमन बॉडी का स्पाइन है, क्योंकि स्पाइन अगर जरा भी इंजर्ड हुई तो पूरे शरीर में पैरालिसिस हो जाती है। तो स्पाइन इस देश के डेमोक्रेसी का इलेक्शन कमीशन है, और इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए, इस देश के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए अगर हमारे पास कोई विकल्प है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट है। दुरुस्त बात जी। तो आपने कहा हिंदू मुस्लिम हो नहीं रहा, हिंदू मुस्लिम, तो एक है कि संबल
संबल में इन्वेस्टमेंट बहुत लेके आ रहा है योगी आदित्यनाथ जी, बहुत इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। उन्होंने कहा संबल किलिंग्स के लिए कांग्रेस जवाबदार है, कांग्रेस ने इनिशिएट किया है पूरे मूव्स जो किलिंग्स हो गए हिंदुओं का। आगे जाके बोला कि समाजवादी पार्टी अगर चाहता था तो कुछ कर सकती थी वहां पर, बट समाजवादी पार्टी ने रहने दिया, यानी इस तरफ देखा नहीं, उसको नजरअंदाज कर दिया। कितना सच्चाई है। संबल को टोटल रिवाइव करने वाला योगी आदित्यनाथ जी 68 श्राइन्स को रिवाइव करेंगे, जो 19 वेल्स है उसको पुनर्जीवित करेंगे, तो काम डेवलपमेंट का नहीं हो रहा है। अशोक यादव जी देखिए, क्या बताऊं आपको, अगर शुद्ध हिंदी में बताऊं तो एक कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अगर आप बबूल का वृक्ष रोप दिए हैं तो आम तो आपको मिलेगा नहीं। आप ऐसी पार्टी को सत्ता में ला दिए हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है। आप अभी फतेहपुर की घटना, आप अभी कल की घटना भाई प्रदीप जी, आप आर्काइव निकाल के देखिए, वहां का जिला अध्यक्ष भाजपा का मुखलाल नाम उसका है, वो खुलेआम ऐलान कर रहा है कि हम जो है कल आएंगे, इस मकबरे पर हमला करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको गिराएंगे। और सरकार का इकबाल कहां गया? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं, जो मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, वो अपने जिलाध्यक्ष के ऊपर उन्होंने न तो कोई प्रिवेंटिव मेजर्स लिया, न तो ऐसे उसको बचाने का काम किया। सर वो तो कह रहे हैं कि वो एक्शन लेने वाले हैं। उन्होंने कहा है योगी आदित्यनाथ जी ने, सर मैं आ रहा हूं, लक्ष्मण साहब जी साहब आपके पास आ रहा हूं, आप टेंशन ना ले, आ रहा हूं आपके पास। सर उन्होंने असेंबली में कहा है कि वी आर गोइंग टू टेक एक्शन, डोंट वरी। सर ये बताइए, आपने असेंबली में देखा होगा सुरेश खन्ना जी नाम पढ़ रहे थे ना, जो मतलब दंगाई लोगों के नाम पढ़ा तो मुख्यमंत्री हाथ बढ़ा के रोक दिया, नहीं नाम नहीं पढ़ना। वो मुख्यमंत्री नाम पढ़ने से रोके। जो आपको याद होगा गोमती नगर में, लखनऊ में कुछ घटना हुई थी, किसी महिला के साथ छेड़छाड़ हुई थी और उसमें 7-8 लड़के थे। जो 8 लड़कों में से एक यादव का नाम बताए मुख्यमंत्री जी, एक मुसलमान का नाम बताए। वो मुख्यमंत्री उन 10 दंगाइयों का जिनका नाम डाला गया, उनका नाम पढ़ने के लिए रोक रहे हैं। अगर मैं बता दूं राजीव जी, अगर वो दंगाई अगर कहीं वो मतलब मुसलमान होते, मैं सीधे बता रहा हूं, अगर वो मुसलमान होते तो अब तक उनके पोस्टर पूरे लखनऊ में, पूरे प्रदेश में लग गए होते। उनके घरों की, उनकी कॉलोनियों की तरफ दर्जनों बुलडोजर का रुख हो गया होता और लगातार टीवी में डिबेट हो रहती कि योगी जी का न्याय, योगी सरकार का न्याय, योगी सरकार में कोई दंगाई जी अशोक यादव जी, आप मुख्यमंत्री हैं, आप चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, ये आपकी प्राइम ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना। आप शपथ लिए होंगे कि भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना संविधान सम्मत सबके साथ एक समान न्याय करूंगा। आपका इतिहास जो भी रहा हो उससे नहीं मतलब, लेकिन आपने जब शपथ ले लिया तो आप संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी, आपकी जवाबदेही। एक्शन लिया है, योगी जी कह रहे हैं कि एक्शन यहां पर लिया जब पंचायती ऑर्डर आया था कि यादव और मुसलमान के घर को इलीगल है उसको तोड़ दो, यादव कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के घर को तोड़ दो। जब ऑर्डर आए थे तो सरपंच को डिसमिस कर दिया, सस्पेंड कर दिया योगी आदित्यनाथ जी ने। यह कहना है कि ये इलीगल ऑर्डर है, इसको मैं रहने, तो क्या एक्शन न्यूट्रल नहीं दिख रहा आपको अशोक यादव जी? नहीं, एक मूवी का गाना मुझे याद आ रहा है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा न हटाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। वो जो पंचायती राज का जो ज्वाइंट सेक्रेटरी था, उसने पर्दा हटा दिया। अब पर्दा क्या था कि पर्दे के आड़ में आप सब काम करो, पर्दे के आड़ में जातिवाद का नंगा नाच करो, पर्दे के आड़ में मुसलमानों को, यादवों को, पीडीए के लोगों को पूरा टॉर्चर करो, लेकिन पर्दा रखो भाई, सामने पर्दा लगा होना चाहिए। वो उस अधिकारी ने पर्दा हटा दिया और पर्दा हटाने की सजा उसको सर, जब आपकी सरकार थी तो 60% पुलिस स्टेशन जो थे उत्तर प्रदेश में, वहां पर हमेशा एसएचओ साहब यादव ही क्यों होते थे सर? अशोक यादव जी, almost 58.9%. Sir, I have the names also. I can send you the names. 58 point. Sir, I am from Sahara. Please remember that. I was the head of 2 Sahara channels. Sahara Samay Mumbai and Sahara Samay NCR. Half the month used to be spent in Lucknow. So sir, नेताजी की सरकार और उसके बाद अखिलेश जी की सरकार कैसे काम करती थी, मुझे एक एक चीज मालूम है। देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं सर, फैक्ट इज आप लोग क्यों हारे? आप लोग इसीलिए हारे ना। राजीव जी 10 सेकंड में इसका जवाब दे दूं। बोलिए सर, 10 सेकंड क्यों? आप सर आप 1 मिनट लीजिए प्लीज, बोलिए। अभी उत्तर प्रदेश में लगभग 60,000 पुलिस की वैकेंसी फुलफिल हुई है, 60,000। और वो आंकड़ा उठा के देख लीजिए, आंकड़ा आपके पास ये भी होगा कि कितने हजार उसमें यादव भर्ती हुए, कितने हजार हुए, क्योंकि वो फिजिकली फिट हैं,
वो अपने प्रतिभा से आगे बढ़े हैं। I agree with किसी you. सरकार की दया के पात्र नहीं है वो लोग। Sir, but that वो is अपनी true. प्रतिभा से आगे बढ़े हैं। But that is true for तो the- अगर आप संख्या ज्यादा है किसी समाज की तो जाहिर सी बात है थानों में भी ज्यादा रहेंगे, जी। पुलिस पिकेट्स पे भी ज्यादा रहेंगे, प्रशासन में भी That is ज्यादा true for the army रहेंगे। also. तो उनकी संख्या ज्यादा है तो क्या करेंगे उनको? That is true for the army also. But by the way, this is क्योंकि आपने बात छेड़ी है इसलिए मैं बता दूं आपको, 60,000 पुलिस कर्मियों की बात हुई है सर। एक आप ही की कमीशन के मुताबिक यूपी की जो पुलिस कमीशन है, आई थिंक इज द 6th और 7th पुलिस का पे कमीशन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सर, उनके मुताबिक 1,65,000 पुलिस वाले चाहिए। 60,000 से क्या होगा सर? कुछ नहीं होने वाला। 1,65,000 new police recruits are required. Now let me go across to लक्ष्मण साहू जी साहब, and before going to लक्ष्मण साहू जी साहब, क्योंकि मैंने हमारे हिंदुस्तानी लॉबियिस्ट की बात करी थी, उसमें एक सुधार कर दूं। उन भाई साहब को मई 21 या मई 31 को ही अपॉइंट किया गया है। अभी अपॉइंट किया गया है जेम्स मिलर साहब को, अभी अपॉइंट किया गया है। लेकिन व्हाट इज अलार्मिंग इज दिस, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, 6 महीने से ज्यादा हो गए ट्रंप साहब की नियुक्ति के बाद हम लोगों ने अपना लॉबिस्ट ही अपॉइंट नहीं किया था वहां पे। पाकिस्तान ने 4 महीने पहले सर, 4 महीने पहले ट्रंप साहब का जो एक्स बॉडीगार्ड था कीथ शिलर, उसको अपॉइंट कर दिया, और ट्रंप साहब की कंपनी में जो कंप्लायंस ऑफिसर था एक, उसको अपॉइंट कर दिया। बोथ हैव अ कंपनी कॉल्ड जेवलिन। सो नाउ यू नो, अब आपको मालूम है कि ट्रंप साहब इसलिए भारत के खिलाफ क्यों हैं। हमारा कोई लॉबिस्ट ही नहीं था वहां पे। ये जेम्स मिलर साहब को तो मैं वैसे ही दोष दे रहा हूं, अभी मालूम पड़ा उसको तो 31 मई को अपॉइंट किया गया है। सर डोंट यू थिंक दैट्स अ फेलियर? लक्ष्मण साहू जी साहब, ये तो फेलियर है सर हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का। अब आप बोलें सर, प्लीज गो अहेड। आप चर्चा सभी मुद्दे पे होती है जी। आज हमारा जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, हम भी पिछले 40 साल 45 साल से डेमोक्रेटिक में मूवमेंट में हम कार्यकर्ता है। तब एक एक वोटर मतदान केंद्र पर जाने के लिए जो प्रयास होने चाहिए, मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए, इसके लिए हमने सालों साल इतने प्रयास किए हैं। कांग्रेस वालों की छवि पहले अलग थी, सिर्फ टिकट दे दो आदमी चुन के आता है, उनके वोटर के साथ ज़्यादा इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी हमको थी। इसलिए ये पूरे प्रक्रिया में वोटर के साथ प्रामाणिक रहना ये हमने सीखा है। ये लोग चुनाव आयोग को एक बार गलती से बोलते हैं, जो कुछ बोलेंगे चुनाव आयोग उसका जवाब देगा। टेक्निकल गलतियां सुधारनी चाहिए, इसके लिए कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन जिन मतदाताओं ने अपना मतदान का हक जताया है और हमको जिताया है, तो उन्होंने उनका जिम्मेदारी निभाई है, तो उनको ये सब अपमानित करते हैं, ये लोग भूल जाते हैं। मतदाता का सम्मान होना चाहिए जिन्होंने मतदान, क्योंकि आज पूरे 40 साल में पूरे भारत भर में जितने बूथ कैप्चरिंग हुई है, क्या जनसंघ के बूथ पर बूथ कैप्चरिंग किसने किया? कांग्रेस वालों का इतिहास क्या हुआ है? पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद में भाजपा कार्यकर्ताओं के घर जलाए जाते हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो जाते हैं, कार्यकर्ताओं को मारा जाता है, जिंदा जलाया जाता है। ये लोकतंत्र में आता है। इसके लिए कोई निषेध नहीं किया इन दलों ने, बेशर्मी जैसे देखते रह गए। केरल में अत्याचार हुए भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर, इतने जाने गई, इतने महिलाओं के ऊपर रेप हो गए। इनकी ये डेमोक्रेटिक ये विरोधी दल एक ने भी उसकी निंदा की है, और ये चुनाव आयोग को बोलते बोलते ये भाजपा के कार्यकर्ताओं का अपमान करते हैं, चुनाव आयोग का बोलते बोलते मतदाताओं का अपमान करते हैं। ये भी लोग सुनते हैं, ये देखते हैं। मोदी जी, योगी जी उत्तर प्रदेश में दूसरी बार चुनकर मुख्यमंत्री आए हैं। देखो जॉर्ज सोरोस की मदद से और सोनिया की दिमाग से अखिलेश को 10-15 सीटें लोकसभा में ज्यादा मिल गई। इनको लगता है हम बराबर है, हम सही है। अरे गुंडा राज है, तुम्हारी प्रसिद्धि थी पूरे उत्तर प्रदेश में, आज गुंडा राज नहीं है योगी का, इतना ध्यान रखो। डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी को मतदाताओं का सम्मान करना सीखो। ये जो चुनाव आयोग का नाम लेकर हमको बदनाम करने की साजिश हो रही है, आगे वाले चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। तीसरी बार भी डंके की चोट पे भाजपा की सरकार आएगी यूपी में। यादव साहब लिख के रखो। यार साहू जी साहब, जगदीप धनखड़ साहब दिख नहीं रहे कहां पर? कहां सब जगह चर्चा हो गया है कि धनखड़ साहब को हुआ क्या है।
उपराष्ट्रपति बीमार साहब अगर आपने सवाल किया है, हाँ। बजाज साहब भी जानते हैं, आप भी जानते हैं जवाब क्या हो सकता है। बीमार हो हर गया चीज को कभी कभी समय ये उत्तर होता है। जब सर, गांव में साहब आएंगे सामने, आज खबर है और गांव में सब बातें खुल जाएगी ना सर, झुंझुनू में इनके काले चिट्टे, इनके सब काले चेहरे सब नजर आएंगे। इनकी क्या नीति थी, ये जो विदेशी साजिश चल रही है भारत के सरकार को अस्थिर करने की, भारत को बदनाम करने की, और उनके ये विरोधी दल वाले जब शामिल हुए ना, इनके भी चेहरे काले पड़ जाएंगे। सर, वो जब झुंझुनू में घंटे है। लग जाएंगे। चिंता मत करो, ये सब होगा। इतना ज्यादा ओवररेट मत करिए मान्यवर। झुंझुनू में नहीं कोई भी शामिल नहीं है, कोई भी शामिल नहीं है। मुझे लेट हो रहा है सर, मुझे जी अशोक यादव जी, अशोक यादव जी जाने के पहले एक मिनट बस, आई टेक 1 मिनट। सौजी साहब एक सेकंड, एक सवाल आपसे पूछना बहुत जरूरी है। आई वांट अशोक यादव जी टू बी प्रेजेंट ओवर हियर, आई वुड लाइक यू टू रिप्लाई। सर, आज अजीत दादा पवार जी ने भी ये कहा है, बाकी बहुत लोगों ने भी ये कहा है, यहां तक कि एकनाथ शिंदे साहब ने भी ये कहा है, कई हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सुनने वाली बात है, उन्होंने कहा कि अगस्त 15 वहां पे नॉनवेज नहीं बिकेगा। 15 अगस्त को केडीएमसी जो है हमारी, वहां और 4 कॉर्पोरेशन है, उन्होंने कहा कि मीट बैन है। सर ये क्या है सर? अजीत दादा पवार कहते हैं महाराष्ट्र में कैसे हो सकता है, एकनाथ शिंदे साहब भी कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये क्या मतलब है ये? तो सर सौजी साहब ये तो अन्याय है ना, क्या समझते हैं आप इसके बारे में कि 15 अगस्त को मीट नहीं बिकेगा, ऊपर चलेगी, कानून के ऊपर चलेगी, कानून के ऊपर चलेगी? ये तो गैर कानूनी है, ये कोई दल का एजेंडा नहीं हो सकता है, ये तो गैर कानूनी है। ये कोई दल का एजेंडा नहीं है, ये सरकार का जो कानून बनाया हुआ है, जो सरकार का गवर्नमेंट का जीआर है, जो पहले से चल सरकार का जीआर नहीं है, चल रहा है, सरकार का जीआर नहीं है, ये केडीएमसी ने खुद ने निर्णय लिया है, देवेंद्र फडणवीस ने, और ये कांग्रेस ने लिया था 1988 में, कांग्रेस ने लिया था। वही हम कहते हैं ना, सरकार कानून के ऊपर जो चलेगा चलेगा, इसमें कोई दलगत क्या निर्णय हो सकता है? राइट। अशोक यादव जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। नहीं हो सकती। अशोक यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए। वेलकम। नमस्कार सर, ग्रेट प्लेजर एज ऑलवेज टॉकिंग टू यू, थैंक यू। स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं देंगे 2 दिन के बाद। शुभकामनाएं आपको भी। ओह, मैं 1 मिनट के लिए मैं जरा अचंभे में आ गया, मुझे लगा कि लक्ष्मण सौदी साहब पाकिस्तान को मुबारकबाद दे रहे हैं अगस्त 14 की, कि उनका इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को हम हमारा ही बोलेंगे ना। और सर ये जो अलगाववाद की जो नीति हुई है 14 अगस्त को, जी, विभाजन जो भीषण तरीके से हुआ था, वो तो हम भूल नहीं सकते 14 अगस्त को। लेकिन यहां पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, सर मोदी जी ने, हम ये सदमा 14 अगस्त का सदमा भूल नहीं सकते हम। सर मोदी जी ने एक चीज कही थी 4 साल पहले, 14 अगस्त को जितना भारत को क्षति पहुंचे है, जितना नुकसान हुआ है 4 साल पहले, ये विभाजन विभीषिका जो है, ये हम भूल नहीं सकते। सर मेरे तो परिवार वाले इन्वॉल्व थे, उनके तो सामने कटे हैं लोग, क्या बात कर रहे हैं सर? हम तो बचपन से यही कहानियां सुनते आ रहे हैं। उसका निषेध ये कांग्रेस वाले करेंगे नहीं कभी भी। सर मैं आपसे बोल रहा हूं, मोदी जी ने 4 बरस पहले 14 अगस्त को रिमेम्बरेंस डे की संज्ञा दी थी कि ये याददाश्त दिन है और मातम मनाने का दिन है कि हमारे इतने लोग मारे गए, इतनी बहनों के साथ बलात्कार हुआ, इतनी जो हमारी, और बाय द वे मैं आपको बता दूं, लाहौर में, सियालकोट में, पेशावर में, गुजरांवाला में, क्वेटा में जो मेरे दादा हुजूर की जो हवेली थी, वहां पे मैं आपको बता दूं आज भी वैसी की वैसी है सर, कोई घुस नहीं पाया उसके अंदर। वहां पर इतनी मारकाट हुई, आप सुन लीजिए, सब पूरी बात सुन लीजिए। अभी युवा पीढ़ी के सामने 14 अगस्त का इतिहास जाना चाहिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी दीवारों पे विभाजन विभीषिका का दिवस सामने ला रही है। अभी भी प्रोग्राम कल तय किए गए लक्ष्मण सौजी साहब, अभी भी पूरे भारत भर में लक्ष्मण सौजी साहब दीवारों पे अभी भी खून के धब्बे हैं, अभी भी। मैं आपको बता दूं, साहू जी साहब, पहले द्विवेदी जी आप ही के क़यादत के थे, मगर अभी द्विवेदी जी उस तरफ है, वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे जो आप बोल रहे हैं। अभी वापस आएंगे ना सर? नहीं सर वापस आ रहे। द्विवेदी जी कभी ना कभी तो आईने में देखेंगे, उनको उनकी खुद की शक्ल याद आ जाएगी। सर वापस आएंगे, अभी लोग को भूलेंगे नहीं सर, अभी वापस आ रहे हैं। द्विवेदी जी हर परंपरा को पालन कर रहे हैं, जय श्री राम बोलते हैं, हर हर महादेव बोलते हैं, मगर जब डिबेट आता है तो उस तरफ, आपके तरफ नहीं है, उस तरफ चले जाओ। नहीं और द्विवेदी जी से मैं आशा करता हूँ वो बदल जाएंगे।
100%। मुझे पूरा विश्वास है मुझे भी इसके उम्मीद है। द्विवेदी जी उनको बोलिए। उनका सच का सामना करने की उनकी शक्ति बढ़ेगी साहू जी आगे। को धन्यवाद दे रहे हैं सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपका जो प्रेम है हमें बड़ा अच्छा लगा, ऐसे ही प्रेम हम लोगों से करते रहिए सर, द्विवेदी जी। और देश को लेके चलिए सर, देश को लेके द्विवेदी चलिए, जी। राजनीति तो होती रहेगी जिंदगी में। द्विवेदी जी, आपका श्रावण खत्म हो गया है, हमारा श्रावण अभी भी चल रहा है। 25 जी, तारीख को जी, खत्म जी। होगा हमारा, क्योंकि हमारा जो है कैलेंडर अमावस्या से चलता है, न्यू मून से चलता है। आपका कैलेंडर पूर्णमासी से चलता है। तो आपका जी, तो आपका रक्षाबंधन वाले दिन खत्म हो गया, हमारा अभी तक चल रहा है 25 तारीख तक है, और उसके बाद गणपति भी है। मैं आपको खुला निमंत्रण देता हूं अपनी तरफ से, आप कृपा करके मुंबई आइए और गणपति में आप शरीक होइए, आप भाग लीजिए कि गणेश महोत्सव। सर, जिसने गणेश महोत्सव नहीं देखा वो जिया नहीं है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जिसने गणेश उत्सव मुंबई का, इंदौर का, नासिक का, पुणे का, नागपुर का अगर नहीं देखा ना, तो वो उसका जीवन व्यर्थ है। मैं आपको सीधी बात बोल रहा हूं। तो मैं आपको निमंत्रण देता हूं, प्लीज आइए महाराष्ट्र का, आप गणेश उत्सव देखिए। मैं आपको बोल रहा हूं, आप लखनऊ वापस नहीं जाएंगे, आप यहीं रह जाएंगे। साहब, जल्दी वो सोनिया के और राहुल के चश्मे से दूर हो जाएंगे तो ये सब बातें हो जाएगी। सर, कोई बड़ी बात नहीं है, राहुल जी भी आपके साथ आ जाएंगे बहुत जल्दी। मुझको तो ये लग रहा है, राहुल गांधी भी बीजेपी में आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं। आप जो बोल रहे हैं सिंगल पार्टी, वन नेशन वन पार्टी, आप समझ तक वन नेशन वन राहुल पार्टी जी आ जाएंगे तो फिर द्विवेदी जी बोलेंगे किसके तरफ? आपस में वन नेशन वन पार्टी, ये भी मोदी जी का एजेंडा है साहब जी साहब। वन नेशन वन पार्टी। टीएमसी आने वाली नहीं है, टीएमसी नहीं आने वाली है, समाजवादी पार्टी नहीं आने वाली है, डीएमके नहीं आने वाली है, कम्युनिस्ट नहीं आने वाले, तो वो तो रहेंगे ही आपके विरोधी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का साथ में आने के लिए। लेकिन सर, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, लक्ष्मण साहू जी साहब, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, द पाकिस्तानीज हैड अ वेरी गुड लॉबियस्ट। उनके जो 2 लॉबियस्ट है ना, कंपनी का नाम है जेवलिन। ये दोनों पहले ट्रंप के एम्प्लॉय थे। अब आपको मालूम रहा कि ट्रंप जो है वो भारत के खिलाफ इतना क्यों बोल रहा है, क्योंकि जो दोनों उसके एडवाइजर हैं पाकिस्तान के बिहाफ पे, वो दोनों उसके पुराने एम्प्लॉय हैं। सर, वी हैव टू वेक अप सर। जल्दी वो दिन आएगा, ट्रंप माफी मांगेंगे भारत की। आई होप सो सर, दिन आएगा। आई होप सो भारत के पास इतना सामर्थ्य है अभी 140 करोड़ लोगों में, लेकिन मैं आपको केवल नेतृत्व में, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहता हूं, माफी मांगेंगे भारत देश की। लेकिन मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहता हूं सर, मैं उम्मीद करता हूं ऐसा नहीं होगा कुछ देर के लिए। मैं ये उम्मीद करता हूं, इसलिए उम्मीद करता हूं कि भारत को जागना होगा, भारत को अमेरिका के प्रेम से निकलना होगा, और भारत को हमें अलग अलग अपनी मार्केट ढूंढनी होगी। ये भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है सर, इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर अस। हम लोगों को अपनी ताकत जानने का ये बहुत बड़ा अवसर है। ट्रंप साहब ने जामवंत का काम किया है हनुमान जी को जगाने का, ट्रंप साहब ने भारत को जगाया है। मैं सीधी बात बोलता हूं। इन एनी इवेंट, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। और द्विवेदी जी, वो वन नेशन वन पार्टी जो बोले लक्ष्मण साहू जी, जरा ध्यान रखना उसमें। आ रहे हैं, हर हर महादेव, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, थैंक यू। धन्यवाद जय महाराष्ट्र, जय जय भवानी, जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। हर हर महादेव। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच, दैट वाज रियली लवली। एंड डू सेंड इन योर कमेंट्स, यूट्यूब पे अंदर ही कमेंट्स भेज दीजिए आप। वी लव रीडिंग योर कमेंट्स, भले ही वो बड़े कलरफुल होते हैं, कभी कभी पता नहीं, कभी मेरी रुद्राक्ष की माला पे कोई गाली देता है, कभी कुछ देता है, कभी कुछ देता है, जो भी है, लेकिन भेजिए जरूर। दोनों का आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर दिया, धीरे धीरे कुछ लोग उस पर फॉलो अप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप फॉलो अप करेंगे, फिर उसके बाद मैं टीका लगा कि आपको क्या है उसमें, ऐसी कोई बात तो नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो आइडियोलॉजी है, अपने जो आदर्श हैं, उसको छुपाना नहीं चाहिए, सबके सामने रखना चाहिए, सीधी सादी बात है। और जहाँ तक के सूट का सवाल है, किसी का सवाल है, आपका जो दिल करे वो पहनिए, लेकिन अपनी संस्कृति को मत भूलिए, अपने इतिहास को मत भूलिए, ये मैं मान करके चलता हूँ। दूसरी चीज, प्रदीप जी, इट इज नाउ वेरी वेरी क्लियर, द Pakistanis hired Javelin, which is run by Trump's ex-bodyguard and Trump's ex-compliance officer of the Trump organization. The company is called Javelin. No wonder Trump is spewing venom against India, because he's been briefed that way. But sir, if a big nation as huge as US can be influenced by just two guys, well, God bless that nation, that's all that I can say. But by the way, which is exactly what going to crumble. People lose faith in the way. Now Trump has kept everything with him, saying that we are in a state of emergency. Recession is up on our face and we're looking to recession, and I've taken, by emergency, I've taken all the powers. I'm determining the tariffs. So what does that mean?
Pradeep ji, So what does that it's mean? going to crumble. And then, as you say, if two persons can influence his decisions, then it's. So I what think does the that country- mean? It's gone Pradeep for ji, the bottom dogs. line. Pradeep ji, bottom line. Yes. Bottom line is today America is a dictatorship. Yes. That's what it means. That Trump is a dictator. He's not a president. So what is Congress? What is the Senate? What is the federal Supreme Court? Nothing. It's only Trump. Welcome. It's exactly what Xi Jinping does in China, what Vladimir Putin does in Russia. That's exactly what Trump is doing. But the Chinese premier still has a way, you have the Politburo or whatever, That's the right. system that advises him, he has a discussion there. Here, there is no discussion. There's no discussion. It's only Trump. It is the Congress that is saying, That's what is right. the Congress for? What are we? If What- you are going to determine the trade, you're going to determine the tariffs, what are we here for? Just an emergency. As Trump says, I wish you weren't here. That's exactly what he's saying effectively, that get out. I don't care what you are. He doesn't care for Congress, he doesn't care for the Senate. That's it. So, America, the oldest democracy in the world, is now no longer a democracy. But I don't hear that and I don't read that. I don't read that on the wire, Pradeep ji. I don't read that on Scroll. I don't read that in the Quint. I don't see it in say जो हमारे बाकी जो यूट्यूबर जो हैं जो मोदी जी के खिलाफ बहुत कुछ बोलते रहते हैं बार कि भारत में लोकतंत्र नहीं है. I don't read that in the Washington Post. I don't read that in the New York Times. I don't read that in the Chicago Herald Tribune. Not even in the Wall Street Journal. I still remember somebody asking Mr. Modi a question about democracy in India. Where is that person? Why is she not asking questions about Trump's democracy and about Trump's dictatorship? याद है आपको? That was a person of Indian origin. That girl had asked a question of Mr. Modi in front of Joe Biden with regard to democracy in India and whether or not minorities are being persecuted here. Where is that girl? Where is the editor of Wall Street Journal? And look at The Economist. The Economist today attacks the Indian media, says that they are ill-informed. Really? The Economist? Do you remember, it is the same Economist that said, we must invade Iraq because he has got weapons of mass destruction. Where are the WMDs? I would love to know. The Economist never apologized for what they said. The Times London never apologized. New York Times never apologized. The Washington Post did not apologize. And Seymour Hersh, who wrote about it in the New Yorker, the present editor, David Remnick, otherwise a Pulitzer Prize winner, he stopped him from writing anything further in the New Yorker. Do you remember who Seymour Hersh is? Seymour Hersh, winner of the Pulitzer Prize twice for the Vietnam War. You remember the My Lai massacre? It is Seymour Hersh who revealed that. He can't write for the New Yorker anymore. So who lives in an autocracy? Who lives in a dictatorship? It is the Americans who do, not us. जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, यहाँ पर हमने मोदी जी को क्रिटिसाइज भी किया है, मोदी जी की तारीफ भी करी है. आज तक तो भैया जैसा कि आप देख रहे हैं ना प्रदीप जी जेल में है ना मैं जेल में हूँ. हम लोग तो यही हैं और चैनल भी चल रहा है और आप लोगों के समर्थन की वजह से और भी बढ़ रहा है. जैसे प्रदीप जी so fond of saying fastest growing channel in the country, fastest growing channel of the nation. Yes, nation now. Well, that's just about it. और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके करें. प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल. The fastest growing channel of the nation. दी फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल ऑफ द नेशन. और प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को एक बार फिर नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. One thing, Martha. भारत माता की जय. जय हिंद. Jai Hind.